beautiful morning to all respected dignitaries, faculty members, and all my dear students here. It gives us immense pleasure to warm welcome you all to the guest lecture program on the topic of innovative practices in education. Innovative means the ability to think beyond the boundaries and create something which is different from that which already exists. And innovation is advancement of new ideas and practices in teaching and learning. I expect my students that after this lecture, they will be able to apply innovation techniques in their teacher training program. I, Nahid B, Assistant Professor at Faculty of Education, are really glad to welcome the guest speaker, Professor Ravikant sir. Sir, you hardly need any introduction. You have made all of us proud of your achievement and numerous capacities and in the term of serving our society. So, I would like to invite our beloved and supportive principal, Professor Rashmi Mehrotra, to introduce our guest speaker. Ma'am. Yes. Good morning. Good morning to all my dear students, faculty members, and especially our chief guest speaker, Professor Ravikant. Good morning, Hello, madam. Ravikant ji here? Okay, Good morning, sir. ma'am. Nice to see you. Thank you, After a long period, sir. Yes, ma'am. Absolutely. So, sir, we start. On behalf of Faculty of Education, Tirthankar Mahavid University, I, Professor Rashmi Mehrotra, welcome our Chief Speaker, Professor Ravikant, Department of Teacher Education, School of Education, Central University of South Bihar, Gaya. It is our great pleasure for us to introduce today's guest speaker, who is going to deliver his lecture on the topic innovative practices in teacher education. That is the topic of today's lecture. Innovative practices, as I told you, means the ability to think beyond the boundaries and create something which is different from that, which already exists. In this context, our guest speaker will throw light on the need of innovation required in teacher education. NEP 2020 also emphasizes that the learning should be holistic, integrated, inclusive, enjoyable, and engaging. First of all, we introduce a brief introduction about our guest speaker. Professor Ravikant is working as professor in Department of Teacher Education under School of Education, Central University of South Bihar, Gaya. Before joining Central University, he is working as associate professor in the School of Education. He was working in, Maulana Azad National Urdu University. And first of all, I tell you, all my students, he started his journey from Tirthankar Mahavir University. He did his post-graduation economics, B.Ed and M.Ed from MJP Rohilkhand University. Junior Research Fellowship was awarded by UGC to him in 2005. He has also qualified National Eligibility Test in education subject twice in December 2005 and June 2006. His major area of teaching and research are educational technology. He is the master of the educational technology, ICT in education and educational psychology. He has more than 15 years of teaching experience at UG, PG, and doctoral level. He has participated in several national seminar conferences and also organized several national and international conferences and seminars. He has published more than 35 research papers
His Google citation is 218, H index 9, and I index 10. This is major achievement, sir, yours. One sponsored project, namely emotional labor and burnout among teacher education of Gaya district, is also in his academic credit. He also contributed several e-content and more than 10 MOOCs to the national agency like NIOS and National Resource Center. Besides above, he is an active member of editorial board and review board of several international and national journals. He is also performing responsibilities as course coordinator of DH course offered by NIOS. Additionally, he is also associated with different universities with academic and administrative responsibility. He is also bearing the responsibility of the program coordinator of IGNOU Study Center. I think, sir, 6 PhD are going on is your supervision. He supervised more than 50 dissertations and 1 PhD was awarded under your supervision. Sir, this is your brief introduction. Sir, one thing also I heartily welcome you and request you to Professor Ravikant, a well-known personality of discipline education, to deliver his lecture to our students and faculty members. So I heartily welcome to you, please. Thank you. Thank you very much, ma'am. First of all, good morning to Dr. Rashmi Mehrotra, to the faculty members of the Department of Teacher Education, Tirthankar Mahavir University, and my dear students. Good morning to all of you. Actually, ma'am has told much more about me. I am just a learner. No, sir, this is a brief about you. Okay, if I go to tell, so I think 25 to 30 minutes is spent for this. No, ma'am, no, I did nothing. But this is a simple process. And what I am going to share with you, actually, they are not at any type of knowledge. They are the experience. I am not no much learned, but I am at the learning phase. So I think I should start my deliberation. So, dear students, because you all are the prospective teachers, and you are going to be a teacher, and it is very much pleasing to me that my journey started from Tirthankar Mahavir University, not Tirthankar Mahavir University, Tirthankar Mahavir Institution of Management and Technology that time, as Dr. Rashmi ma'am told. And you will be amazed that my first international research paper was published when I was working in the Tirthankar Mahavir University. So, natural, no doubt, I have an emotional attachment with Tirthankar Mahavir University, because when Tirthankar Mahavir University was in developing phase, we all were the pioneer teachers. So that is why it is my privilege. It is an honor to me to be associated with you. Now I should start my words about today's lecture. So, dear student, because you all are going to become a teacher, and the time has changed very rapidly, especially just after the Corona 2020. Corona has changed all the aspects, and if not all the aspects, so some of the aspect of all living person on this planet. And I think you all will be agree with me. Everyone has changed. सब कुछ बदला, हर जगह बदला है, हर aspect बदला है. Because we are teachers, so we should also change ourselves. And you all are the witness what changes we faced during the Corona period. Just the government declared the lockdown, and everything was on a stagnated level. No one can go out, so everything was disconnected. So there will be a great problem. How can we restart our teaching learning process during the Corona lockdown? So I feel that during this Corona lockdown, we have witnessed so many innovations. Before the Corona lockdown, nobody was aware about the Zoom meeting, Google Meet, Jitsi, and other, you can say, the platform. But just after the Corona, after some time, everyone was knowing about the Zoom Meet. Everyone is knowing about the Google Meet. So this is also the innovation. I am very much positive about the Corona lockdown, apart from the losses of the human being. But I am a little bit positive that the entire teaching fraternity, they become the very acquainted with the technology.
either by their interest, either by the government order, चाहे उनके वो उनकी अपनी इच्छा से हुआ या सरकार या कॉलेज की जबरदस्ती से हुआ, but they will come on the virtual platform. They all will came on the virtual platform. सबको आना ही पड़ा, स्मार्टफोन यूज करना पड़ा, टाइपिंग सीखनी पड़ी, गूगल प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ा, सब कुछ एवरीथिंग. So this was also a type of innovation. So dear students, before going to discuss our deliberation, we should know what is the innovation. And I will request to the coordinator of the program that at least give me 10 to 15 minutes with the interaction of the students. Okay, because this is starting, this is the one-way lecture. So what is the innovation? And what is the difference between creativity and innovation? There is another word, creativity. So what do we need in teacher education? Do we need creativity or do we need innovation? Okay, so what is creativity? I think you all will be aware that to create something new which doesn't exist before. इसको ध्यान से सुनिएगा. क्रिएटिविटी वो होती है जब आप कुछ नया बनाते हैं, लेकिन शर्त है उसके साथ, इट इज ए कंडीशन that doesn't that particular thing doesn't exist before. मतलब ऐसी कोई चीज जो पहले exist नहीं करती और आपने वो चीज बनाई है, that will comes under the creativity. So creativity is a बिल्कुल entire you can say the quite a different thing from the innovation. मुश्किल भी है थोड़ा. Now come to the innovation. So innovation is nothing. Innovation is a change in existing things or product or services or software, you can say. जो पहले से मौजूद है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए अगर हमने उसमें चेंज किया, that is the innovation. Okay, now just take the example that before the invention of these ball pen, we were having the ink pen. Okay, so ink pen has their own limitations. They need more care, they need more maintenance. So someone think about the pen which will not leak the ink in your pocket, and the maintenance will be very less. So they invented the ball pen. The first time when ball pen is invented, that was the creativity. Okay, and before that time, now we are moving ahead, and now you are using the different types of ball pens, different types of ball pens. So now if you are using a different type of ball, that is the innovation. Okay, so this is the difference. Creativity that doesn't exist before, innovation, the positive changes in the existing things. Okay, so this was the innovation. Now I am trying to share my screen, if I could. Okay, Nahid ma'am, because you have the right to share the screen. Please share the PPTs. Okay, sir. I will manage. Okay, Yes, because the host has the only right to share the screen. So this is the we need innovation in our teaching learning process, because dear students, you must be realized, and I think you are realizing that teaching is a quite different profession. I am also a teacher by chance, not by choice. Definitely, I will say this on a public platform that I am a teacher by chance, not by choice. But after some time, when I completed my B.Ed program, this entire metamorphism come after the B.Ed program, and now I should say proudly that I am a teacher by choice. Okay, so teaching is a profession which we need a very different vehicle. So this is the innovation. Now, just first one quotation: if we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow. जॉन डेवी ने बोला था ये अगर आप आज भी कल भी ऐसा पढ़ा रहे थे ट्रेडिशनल वे में, आज भी ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स आप उनका टुमारो, उनका भविष्य क्या कर रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं. मतलब ये सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि आपको जो पहले पढ़ाया वो आज नहीं पढ़ाना चाहिए. Here I should share another quotation, and that is that a teacher should be the master of simplicity, but the enemy of simplism. Try to understand. A teacher should be the master of simplicity, but enemy of simplism. जैसे आप लोग बीएड में पढ़ते होंगे ना, नेचुरलिज्म, बाइलिंगुअल मेथड ठीक है मैम, या सिर्फ इंग्लिश में बोलूं? हेलो सर, बाइलिंगुअल कर लीजिए.
Sir, ठीक है, bilingual. ठीक है, ठीक। तो जैसे आपने नेचुरलिज्म पढ़ा होगा, आइडियलिज्म पढ़ा होगा, प्रैग्मेटिज्म पढ़ा होगा, दैट इज ए सिंपलिज्म। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ए टीचर शुड बी द मास्टर ऑफ सिंपलिसिटी। ठीक है, इसका मीनिंग ये कि टीचर जो है वो सिंपलिसिटी का मास्टर होना चाहिए। टीचर को एक सिंपल साधारण तरीके से, मतलब उसकी पर्सनैलिटी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। बट द एनिमी ऑफ सिंपलिज्म, लेकिन जो सिंपलिज्म है कि आप हमेशा ही सिंपल बने रहिए, दैट शुड नॉट बी देयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। तो आप दिखने तो सिंपल होने चाहिए, लेकिन whenever you are interacting with your students in the class, in that condition you should not be simple। ये ध्यान रखिएगा। ये डेफिनेशन भी वही बोलती है कि जैसा पहले पढ़ाया आपने एक दिन पहले, आज वैसा मत पढ़ाइए। अगर ऐसे आप चेंज करते रहेंगे लगातार, so you will improve the teaching learning process। okay, you are doing different type of innovation। ये इनोवेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि हर इनोवेशन का आप पेटेंट कराएंगे या सब कुछ बदल देंगे एकदम। नो, यू आर ए टीचर, यू जस्ट सिंपल स्टार्टिंग फ्रॉम द चेंजेस, एंड दैट इज आल्सो द इनोवेशन। कल मैंने, अगर मुझको लगता है कि कल मैंने अपनी क्लास में क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाया था और वो बहुत इफेक्टिव नहीं रहा, स्टूडेंट नहीं मतलब रिस्पॉन्ड कर पा रहे थे, तो आज मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा। परसों हो सकता है फिर से क्वेश्चन आंसर पे आ जाऊं। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट डेफिनेशन, इफ ए चाइल्ड कांट लर्न द वे वी टीच, मे बी वी शुड टीच द वे दे लर्न। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है और इससे भी मैं सहमत हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल वर्ड्स में कर देता हूँ। नाउ द टीचर्स आर टीचिंग नॉट व्हाट द स्टूडेंट्स वांट, बट दे आर टीचिंग व्हाट दे आर नोइंग। दुर्भाग्य से ये हमारे साथ हो रहा है, हर जगह नहीं लेकिन ज्यादातर जगह, कि टीचर वो नहीं पढ़ा रहे जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। टीचर सिर्फ वो पढ़ा रहे हैं जितना वो जान रहे हैं उतना वो पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे क्या पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ना चाह रहे हैं, ये उनसे मतलब नहीं। जो ट्रेडिशनल वे में होता था ना हमारी टीचिंग, जिसको हम लोग टीचर सेंटर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम अभी भी टीचर सेंटर से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड ऑलवेज यूज द इनोवेशन। अब ये इनोवेशन है क्या, देखिए, टू ऐड समथिंग और एंड चेंज इनटू न्यू वन। देखिए चेंज की बात हो रही है, टू ऐड समथिंग। जब नेचुरल है कि जब कोई चीज आप नहीं जोड़ेंगे तो एक नई चीज बन जाएगी। दो मेटल्स में जोड़ते हैं, दो मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं तो एक मेटल बनता है, एक और मेटल जोड़ दिए फिर नया मेटल बनेगा। तो ऐड करना है, यहाँ ध्यान रखिए, क्रिएटिविटी से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर यहाँ क्रिएटिविटी की बात हो रही है, if we will talking about the creativity, then I will say that you should invent something new which doesn't exist before। अब मैं आपसे बोलता कि ऐसी चीज ढूंढो जो पहले से बिल्कुल हो ही नहीं रही कहीं पर। जो है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट मतलब चीज है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। और सच सच आपको बताऊं मैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू एवरीवन टू बिकम द क्रिएटिव, बट इट इज पॉसिबल टू एवरीवन टू बिकम इनोवेटिव। क्रिएटिव होना सबके लिए नहीं है, नेचर सेलेक्ट करती है अपने हिसाब से। और इनोवेटिव हो सकते हैं हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। कोरोना में आपने देखा होगा कि जो मुझे याद आ रहा है कि एक लेडी टीचर थी, उनका फोटो शेयर हुआ था, स्कूल टीचर थी कहीं की वो, एंड दैट टीचर वाज राइटिंग ऑन द बोर्ड, but unfortunately she was not having the tripod for the mobile। so he just hang his mobile with the help of the hanger। वो कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है ना, चेयर से उन्होंने बांध के किस तरीके से अरेंज कर लिया था उसको। वो फोटो शेयर हुआ था जस्ट आफ्टर द कोरोना, ड्यूरिंग द कोरोना लॉकडाउन। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया ये क्या तरीका है, बट आई अप्रिशिएट हर। तो बहुत से लोग थे ऐसे जिन्होंने किया। दिस इज द इनोवेशन। व्हेन यू आर having nothing in your home, you are stuck during the lockdown, then you are innovating something new because you don't have the tripod। that is why you have your own arrangement to just fix your phone and in the favor of your students, for the welfare of your students। so this is the innovation। अब इसके लिए कोई पेटेंट थोड़ी होगा कि आपने वो कपड़े के हैंगर में टांग के कुर्सी से बांध के कर लिया। नो, अलग अलग तरीके लोगों ने वो किए थे उसमें। दिस इज द इनोवेशन। कुछ ये सिंपल से जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये कुछ दे आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इससे अलग भी हो सकती है। नोवल होना चाहिए, अनयूजुअल जो पहले नॉर्मली यूज नहीं हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड। इनोवेशन होगा तो अनएक्सपेक्टेड ही होगा। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स जो है ये क्रिएटिविटी का एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्रेश, कुछ नया होना चाहिए। ऑफ बीट, जो नॉर्मल से हटकर चल रहा हो। अनबीटन, जो जिसको हम मतलब वी कांट डिनाई,
हम उसको मतलब मना नहीं कर सकते, नहीं हम मानेंगे, सब मानेंगे बहुत अच्छा चीज़ है ये। डिफरेंट हो, क्रिएटिव, डिफरेंट, क्रिएटिव एंड ओरिजिनल, एडवांस, यूनिक, टेक्नोलॉजी बेस्ड, इमेजिनेटिव। टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, आगे डिस्कस करेंगे इस पे। इमेजिनेटिव, इन्वेंटिव, इंस्पायर्ड एंड स्टेट ऑफ आर्ट, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इनोवेशन से रिलेटेड हैं, मतलब जिनको हम लोग सोच सकते हैं कि भाई ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो दीज आर द मीनिंग ऑफ इनोवेशन। आपको ध्यान रखना चाहिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार, कि इनोवेशन में आप अपनी डेली लाइफ में, टीचिंग प्रोफेशन में, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी हैं, आप क्या नया कर रहे हैं, पहले से एग्जिस्ट चीजों में जो थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, वो चीजें जो होती हैं वो इनोवेशन है। क्लियर? बहुत ही नई चीजें होती हैं तो फिर भाई थोड़ा सा बड़े लेवल पर जाकर उनके पेटेंट होते हैं, बट वी आर टीचर, वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ पेटेंट। वी आर जस्ट मेकिंग अवर सेल्फ मोर, you can say the convenient, more comfortable, and making our deliberation more effective in the welfare, in the you can say the for the benefit of our students। अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं अपनी क्लास में जो भी लोकल रिसोर्सेज मेरे पास हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज मेरे पास हैं, उसमें जो मैं चेंज कर रहा हूँ, दैट कम्स अंडर द इनोवेशन। ओके, तो ये इनोवेशन की चीज है। नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज। इसके बाद मीनिंग देखिए, अब इनोवेशन टीचिंग आता है, ठीक है, या इसको हम लोग इनोवेटिव टीचिंग भी बोलते हैं। ये क्या है? एनी काइंड ऑफ टीचिंग विच एड्रेस क्रिएटिविटी एंड अप्लाइज इट टू मेथड एंड कंटेंट कैन बी सीन एज इनोवेटिव टीचिंग। क्रिएटिविटी वर्ड यूज किया है, अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अभी तो आप कह रहे थे सर क्रिएटिविटी अलग है, अब यहाँ क्रिएटिविटी लिखा हुआ है। तो देखिए, इनोवेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ क्रिएटिविटी। Normal people are not able to think just out of the box. There are very few people who can think it, who can think out of the box. That is why I have used this word creativity, because this is the more you can say the appropriate word. But it doesn't mean that this creativity in the sense of original creativity. Creativity तो हर जगह होती है। जब आप कुछ नया बना रहे हैं तब भी क्रिएटिविटी है, और जो पहले से एग्जिस्ट चीजें हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं तब भी क्रिएटिविटी है। ओके, किसी ने सोचा कि यार ये बॉल पेन है हमारा, क्यों ना इसमें छोटी सी पेन ड्राइव लगा दें। ये जेब में लगा रहता है ना हमारे, तो कहीं ना कहीं हमको जरूरत पड़ सकती है, तो क्यों ना इसमें क्या कर दें, इसमें एक जो है छोटी सी पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव भी पहले से इन्वेंटेड थी, बॉल पेन भी पहले से इन्वेंटेड था। अब इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, फ्यूज कर दिया, हेल्प के लिए, मतलब मदद के लिए, कि आपको पेन भी लगा हुआ है और आपकी पेन ड्राइव भी लगी हुई है उसमें। तो आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचा ना उसने, कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव सोचा। किसी ने सोचा कि इसमें हम लोग वो लेजर लाइट लगा दें, तो वो बन जाता है क्या बोलते हैं उसको, वो जो लेजर लाइट यूज करते हैं ना हम लोग पावर पॉइंट्स पे, तो वो यूज हो जाएगा हमारा उसी तरह से। तो दिस इज द इनोवेशन। तो ध्यान रखिए, ऐसा ही हमें यहाँ पर करना है, लेकिन ये वही कर पाएंगे जो लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट नहीं सोचेंगे आप डिफरेंट सोचेंगे क्यों? वाई डू यू नीड टू थिंक डिफरेंटली? क्यों आपकी जरूरत पड़ रही है भाई, चल रहा है ऐसे तो चलने दो उसको। So those who are really interested in teaching learning process, those who are really, you can say the give honor to the to the teaching profession, they will always try to think about out of the box। ये वही लोग होंगे जो टीचिंग को टीचिंग की तरह समझते हैं, टीचिंग को रेस्पेक्ट देते हैं, स्टूडेंट्स को रेस्पेक्ट देते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रेस्पेक्ट देते हैं। दे विल ओनली थिंक अबाउट द इनोवेशन। हर आदमी नहीं करेगा इसको, ही जान लीजिएगा। और एक बात और आप लोगों से यहाँ शेयर करना चाहूंगा जरूर, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज में। पूरी दुनिया में जितने भी काम ऐसे हुए हैं जिनको हम बोलेंगे क्रिएटिव, जो पहली पहली बार हुए, या इनोवेटिव भी मान सकते हैं आप उसको, नेचर उनको सिलेक्ट करती। आप लोग, चूंकि मैं बाय नेचर थोड़ा एथीस्ट हूँ, नास्तिक हूँ, तो चूंकि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं इस ईश्वर का नाम नहीं लेता, लेकिन आप लोग अपने अपने ईश्वर का नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईश्वर ने या प्रकृति ने कुछ खास लोगों को कुछ खास काम करने के लिए चुना है, हर आदमी को नहीं, ये ध्यान रखिए। और हर आदमी इस लायक भी नहीं है। कभी आपने सोचा कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, तो सेब पहली बार थोड़ी गिरा था, सेब तो न जाने कितनों के ऊपर गिरा होगा उससे पहले। कितने ही बाग होंगे दुनिया में, कितने ही सेब होंगे, कितने ही सेब के नीचे बैठने वाले लोग होंगे पेड़ के नीचे, कितने लोगों के ऊपर सेब गिरा होगा। कोई ले गए होंगे चुपचाप, किसी ने खा लिया होगा, किसी ने कुछ कर दिया होगा, लेकिन न्यूटन ने नहीं खाया ना। उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं यहाँ से ले जाऊँ, बिकॉज नेचर हैज चूज द न्यूटन। आप अपने ईश्वर का नाम ले सकते हैं कि भगवान ने उसको चुना। नेचर का सिलेक्शन सबसे बेस्ट है। तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए भी वही है। तो देखिएगा, सोचिएगा इस चीज को।
न्यूटन ने सेब नहीं खाया, नेचर उसको उस तरीके से गाइड कर ही नहीं रही थी। नेचर ने कहा तुम्हें खाना ही नहीं है तुमको, तो अब वो सोचने लगा नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं। बस ये क्वेश्चन उसको जो है परेशान कर गया, और देखिए उसने हमको ग्रेविटी दे दी। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए। तो इनोवेशन टीचिंग में भी जो होगा ना, वो भी वही टीचर करते हैं जो टीचिंग को टीचिंग की तरह समझते हैं। अब आप अगर सिर्फ जॉब की तरह समझेंगे, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, तो वो कोई इनोवेशन नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन वो इनोवेशन जरूर करेगा जो टीचिंग को लाइक करेगा, स्टूडेंट्स को लाइक करेगा, अपने प्रोफेशन को लाइक करेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लाइक करेगा, वही इनोवेशन करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि ये सारी चीजें जब होंगी, उसमें आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचेंगे, कुछ डिफरेंट आपके पास होगा, कुछ नई चीजें आपके पास होंगी, पढ़ाने के तरीके अपने पास होंगे, तब आप कहेंगे कि हम लोग जो है एक इनोवेटिव टीचर भी हैं, या इनोवेटिव टीचिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, मैं अपने वाले से बढ़ता हूँ। मैम आगे की स्लाइड पर बढ़ जाइए, यहाँ से तो मैं कर नहीं पाऊंगा। देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो शायद उधर से बढ़ नहीं पा रही है, लेकिन मैं अपने इससे बोलता हूँ आपको बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए क्यों हमें जरूरत है, जैसे मैं अभी आपसे बोला था ना, ये सब जरूरत क्यों है हमको भाई, क्यों करें हम। तो कुछ बेनिफिट्स हैं इसके। वो क्या बेनिफिट्स है? नंबर 1 इज डेवलप्स ग्लोबली कम्पिटिटिव लर्निंग। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना लॉकडाउन, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना, we always move ahead to use in the technology in different form. कोरोना के कारण भले से मजबूरी में हुआ हो, लेकिन सारे के सारे लोग टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे। नाउ वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी। इसके बिना आपका एक दिन गुजारा नहीं हो सकता किसी भी हालत में। और आप चाहें तो इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा। कैसे देख लीजिएगा टेस्ट करके? इसको टेस्ट करके ऐसे देख लीजिएगा आप कि एक दिन अपना मोबाइल फोन आपका छूट जाता है ना घर पे, एक भी दिन या कुछ देर के लिए, या आपको अभी पता चला आपने पॉकेट में हाथ डाला एंड यू डिडंट फाइंड योर मोबाइल फोन, यू जस्ट बिकम रेस्टलेस। एकदम से कलेजा आ जाता है मुंह, अरे फोन कहाँ गया? बिकॉज यू वी ऑल आर डिपेंडेंट, वी ऑल आर डिपेंडेंट। ये नहीं होती टेक्नोलॉजी तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। कोरोना में टीचर्स के साथ आप नहीं मिल पा रहे होते, कितने ही काम हमारे उसके दौरान हुए। तो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। किसी भी हालत में हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हैं। And when you are using the technology, we are automatically connected to the entire world. ये जो इंटरनेट नाम की चीज हमको मिली ना यहाँ पर, इसने पूरे संसार से जोड़ दिया हमको, पूरे संसार से। आप कुछ भी करते हैं, irrespective of your profession, irrespective of their interest, irrespective of their place, even irrespective of your language, you are connected with the entire world. कुछ भी हो आप, कुछ भी, किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, we are using internet, we are using technology. प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे अदर देन द टीचिंग प्रोफेशन, दे आर यूजिंग जूम, जिटसी, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, वो लोग तो पहले से यूज कर रहे थे। बट नाउ इन टीचिंग प्रोफेशन वी आर यूजिंग। So whenever you are using these technologies, you become globally competitive learner. यहाँ मैंने वर्ड यूज नहीं किया है ग्लोबली लर्निंग, सॉरी ग्लोबली कम्पिटिटिव टीचर्स, मैंने वर्ड यूज किया है लर्नर्स। ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे रीजन है, ऐसा मेरा मानना है। शायद you all will be agree with me that only those persons would be a teacher who would be a learner. जो लर्नर होंगे, सीखने वाले होंगे, वही टीचर्स होंगे। क्योंकि किसी को सिखाने से पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने के लिए you must be a learner. That is why I deliberately use this word, develops globally competitive learner.
उसके बाद अगर वो टीचर बनेंगे, और देख लीजिएगा आप, जो भी आपको लगता है ऐसा जिसको आप कंसीडर करते हैं दे आर द इनोवेटिव टीचर्स, तो यू विल फाइंड दैट दे विल बी 101% लर्नर। वो हमेशा पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं, कुछ नई बातें करते हैं। तो दिस मीन्स जब हम ये टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वी आर बिकमिंग ग्लोबल। ग्लोबल ग्लोबल सिटीजन भी बोलते हैं इसको, और इंटरनेशनल सिटीजन भी बोलते हैं। अभी तक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, डिजिटल सिटीजन। So overall, we become the global. The next one is creates lifelong learners. तो नेचुरल है कि ये टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हैं, इससे आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बनते हैं। अभी आप देख लीजिएगा, मोबाइल आप छोटे से बच्चे के हाथ में, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि 6, 7, 8 साल के बच्चे भी जो है मोबाइल यूज नहीं कर पाते, लेकिन बड़े अट्रैक्टिव रहते हैं उसकी तरफ, अटेंशन रहती है उनकी। और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, ग्रो अप करते हैं, और उनके मतलब हाथ अच्छे से काम करने लगते हैं, तो बहुत बचपन से ही आज की डेट में वो लोग यूज कर रहे हैं, और अच्छी खासी एज वाले लोग भी यूज करते हैं। ठीक है, अब एज का कोई बाउंडेशन नहीं है मोबाइल को यूज करने में। तो जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आगे, जैसे जैसे इन्वेंट करते हैं, यू बिकम द लाइफ लॉन्ग लर्नर। एंड ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ये भी हमको यही बोलती है, वी शुड डेवलप ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। और ये क्यों बोल रही है? क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आपको टेंडेंसी होगी दूसरों को सिखाने की। जब आप खुद ही नहीं सीखेंगे, आप दूसरों को क्या सिखाएंगे? और वैसे भी लाइफ लॉन्ग लर्नर तो दीज ऑल ओवर बी डिमांडेड इन ऑल प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन में इनकी डिमांड होती है, सिर्फ टीचिंग में नहीं। लेकिन हम लोग टीचर हैं भाई, हम लोग को वी शुड मेक अवरसेल्फ मोर एंड मोर एडवांस। तो हमारे हमको तो होना ही चाहिए लाइफ लॉन्ग लर्नर, सारे टीचर्स को होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी जब हमारे पास आती है, इनोवेशंस जो आते हैं नए नए, आप देखिएगा, हम क्या क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन बुक्स पर आ गए। ठीक है, और ऑनलाइन बुक्स के भी जो है, जो सॉफ्ट कॉपी है, या तो आप पीडीएफ में पढ़ेंगे। पीडीएफ इज, यू कैन से द नॉट द ई बुक। ये ध्यान रखिएगा ये बात को। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको पीडीएफ मिल गया है किसी किताब का, दैट इज द ई बुक। एक्चुअली दैट इज नॉट द ई बुक, दैट इज द ई वर्जन ऑफ बुक। ठीक है, स्कैन कर दिया उसको, या उसकी जो सॉफ्ट कॉपी थी उसको कन्वर्ट कर दिया पीडीएफ में। ई बुक हैव ए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट फॉर्मेट। उसका जो यूजर क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेस जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ई बुक जो है वो एक अलग कंसेप्ट। बट दिस ई बुक इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू मेक अवर पर्सन लाइफ लॉन्ग लर्नर। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमको मदद मिल रही है। वी कैन फाइंड दोज रेयर बुक्स ऑन द इंटरनेट विच आर नॉट अवेलेबल टू अस। हम बहुत सारी ऐसी किताबें उसमें ढूंढ लेंगे, मिल जाएंगी आपको, हो सकता है आपसे शेयर भी होती हों, कि जिनको ढूंढना आसान नहीं, जो नहीं मिल सकती। फॉरेन की बुक्स हैं। तो ये सब इनोवेशन ही है, ये टेक्नोलॉजी के इनोवेशन है सारे के सारे। और जब आप इसको यूज करेंगे एज ए टीचर, तो ऑटोमेटिकली आप इनोवेटिव टीचर बन जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज हेल्प मेंटेन द मोटिवेशन टू लर्न। अब चूंकि आप पढ़ना चाहते हैं और आपके पास है अवेलेबल चीजें, है ना, आप पूछना चाहते हैं, टीचर अवेलेबल हैं आपके पास। टीचर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, फेस टू फेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, फोन पर अवेलेबल है। आपने व्हाट्सएप पर उनको मैसेज कर दिया, ठीक है, टीचर वहां से फ्री हुए, उन्होंने भी आपको उसका जवाब दे दिया, आपकी क्वेरी को सेटिस्फाई कर दिया। तो ऑटोमेटिकली यू बिकम मोटिवेट। हम हमारा मोटिवेशन कब खत्म होता है टीचिंग में? कि जब मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, एक क्वेरी है, एक डाउट है, एंड दैट आर नॉट बीइंग इंटरटेन। या तो वो इंटरटेन ही नहीं हो रहा, टीचर उसे एंटरटेन नहीं कर रहा, मतलब हमको परमिशन नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन पूछें। ठीक है, या उसका प्रॉपर आंसर हमको नहीं मिलता। तो जब हमको प्रॉपर आंसर नहीं मिलता, जब हम इंटरटेन नहीं होते, तो स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे 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 हमारे इंटरेस्ट का होता है, डाउन होता है, और हम लर्निंग के लिए, किसी भी चीज के लिए डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अच्छी बात ये है कि आपको जब जरूरत हुई, आपने, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, उनको जब जरूरत होती है, उनको पता है कि सर मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे, तो वो, उनको पता है कि सर को भेज देंगे, वहां से जवाब आ ही जाएगा। मैं जब भी तुरंत जैसे देखता हूँ मौका मिलता है, मैं उनको जवाब दे देता हूँ। एक मोटिवेशन लेवल। अब मेरे साथ भी ऐसा ही है, जब मुझको जरूरत होती है, इवन इवन आई आई टेक द हेल्प ऑफ माय स्टूडेंट। मुझको जरूरत होती है, मुझको लगता है कि मेरा वो स्टूडेंट जो है वो इस बारे में जान सकता है, मैं उसको मैसेज करता हूँ, वो मुझे जवाब दे देता है। तो हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? ये इसी इनोवेशंस की वजह से हुआ है। ये नहीं होते हमारे पास, हम नहीं रहते टच में। द नेक्स्ट वन इज एनकरेज डीपर लर्निंग कंपेयर टू सरफेस लर्निंग। एक सरफेस लर्निंग जो पहले टीचर सेंटर्ड में हुआ करती थी। एक बात और मैं आपसे यहाँ शेयर करूँ, ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूँ, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर टीचर नाउ। टीचर की डिपेंडेंसी को खत्म कर दीजिए अब। ये सिर्फ बहानेबाजी है आपकी,
कि टीचर आए नहीं थे, क्लास हुई नहीं थी, टीचर ने पढ़ाया नहीं था, टीचर ने समझाया नहीं था। दीज ऑल आर द बकवास, एकदम बकवास है ये। अभी यू आर ओनली प्रोक्रेस्टिनेटिंग। आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। देखिए, समझिए इस चीज को। जिस समय पर मैंने एमएड किया था, रश्मि मैम ने किया था उस समय पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। फोन तक तो था नहीं हमारे पास। फोन तो मैंने बीएड में आके देखा है पहली बार अपने हाथ में लेके मोबाइल, 2004 में। सोचिए, आप लोग लकी हैं कि आप लोग को स्टार्टिंग से फोन मिल रहा है देखने के लिए। आपके बाद वाली जो जनरेशन है वो तो पैदा ही फोन के साथ हो रही है। तो रश्मि मैडम और मैं तो कह सकते हैं इस बात को कि साहब हमें तो इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि हमारी तो क्लासेस ही नहीं हुई, किताबें ही नहीं थी हमारे पास, मिलती भी नहीं थी मार्केट में ऐसे। बट यू कांट, लेकिन आप नहीं कर सकते भाई, नो। ये सब बेकार की प्रोक्रेस्टिनेशन वाली बातें हैं, टालम टोली के। टीचर आए नहीं थे, टीचर नहीं आए थे, आप यूज कीजिए ना इंटरनेट का, क्या अवेलेबल नहीं है। ये सब कुछ जो मैंने आपको लिखा है इंटरनेट से लिया हुआ है, डालिए इसको इंटरनेट पे, सब मिलेगा, एक से एक बढ़िया मिलेगा। सेम टॉपिक पर आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिलेंगे। मेरा पसंद नहीं आ रहा, आप दूसरे का पढ़िए, तीसरे का पढ़िए, सैकड़ों। बट ये है तब जब आप पढ़ना चाहेंगे, अदरवाइज सिर्फ आप चीजों को टाल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पहले हुआ करती थी ना, वो टीचर सेंटर्ड में, वो सर्विस लर्निंग हुआ करती थी। कभी टीचर आए, कभी नहीं आए, या आए तो उन्होंने एकदम शैलो ऊपर ऊपर का पढ़ा है, ठीक है। लेकिन नाउ वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज। इन एंशियंट पीरियड टीचर वाज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट नाउ टीचर इज द वन ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंतर को समझिए आप। हम लोगों के टाइम पे सिर्फ टीचर ही होते थे इंफॉर्मेशन के सोर्स। ठीक है, उनसे जाके पूछते थे, वो बताते थे हमको। अगर वो उपलब्ध नहीं है, हमको अवेलेबल नहीं है, तो हमको पता नहीं चलता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब आप हर लेक्चर को, हर चीज को, अगर टीचर नहीं भी हैं, आप यूट्यूब पे ढूंढिए, गूगल पे ढूंढिए, कितनी वेबसाइट्स हैं, उन पर ढूंढिए, वहां से पढ़ लीजिएगा। हम्म? खान सर आपको याद होंगे, यहीं बिहार के ही हैं वो। कितनी लेक्चर है उनके, एक से एक शानदार, लगभग हर विषय पे हैं उनके। और आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैं बड़ा उनसे इंप्रेस रहता हूँ। उनके जो पढ़ाने का तरीका है, हालांकि कुछ चीज़ों में गड़बड़ कर देते हैं वो, कभी कभी उत्साहित ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो उनका तरीका है स्मार्ट बोर्ड को यूज़ करने का, आप सब लोगों ने देखे होंगे जरूर उनके वीडियो। इतने बढ़िया से स्मार्ट फोन, इतने जो कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसको कहेंगे हम लोग फैक्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, बड़ा इजीली समझा देते हैं वो। इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई मुझे पल्ले नहीं पड़ती थी कभी। उनके एक उनका यूट्यूब का वो आया, किसी ने मुझसे कहा था, उसमें देखिएगा, बड़ा अच्छे से समझाया उन्होंने। वो मैंने देखा तो सारी कहानी समझ में आ गई। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये तो जो है साहब हमारे टीचर पढ़ाना चाहिए था, उन्होंने तो पढ़ाया नहीं, तो इसलिए मुझे आती नहीं इसके बारे में, नो, दिस शुड नॉट बी हैपन। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने सारे इनोवेशन है आपके लिए हैं, सब आपको कंफर्टेबल, आपके अपने कंफर्टेबल जोन में अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपके कंफर्टेबल जोन में अवेलेबल है। लेकिन ये सब है क्या? इनोवेशन। किसी ने सोचा इस तरीके से? किसी ने सोचा होगा कि ये ब्लैक बोर्ड, चौक और ये सब यूज करते करते क्यों ना हम ऐसा करें कि इतनी बड़ी स्क्रीन को यूज करें। ठीक है, फिर किसी ने उसको सेंसिटिव बनाया, फिर उसने किसी में डे बाई डे स्मार्टफोन में चीजें जुड़ती चली गई। एक बार में नहीं जुड़ी हैं ये। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट डे से स्मार्ट बोर्ड ऐसा ही रहा होगा, नो। पहले बहुत सिंपल रहा होगा, जैसे, और आप शायद आपको पता भी हो, और आप लोग यूज भी कर रहे होंगे, प्रोजेक्टर होता था ना सिंपल। पहले ओएचपी पे आते थे हम लोग। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ओएचपी देखा या नहीं है, लेकिन रश्मि मैम और हम लोग जब वहाँ पढ़ाते थे, हम लोग यहाँ ओएचपी बड़ा उसमें था। जब तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में पढ़ाते थे हम लोग, परमानेंटली ओएचपी क्लास में रखा रहता था। ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की है ओएचपी से। मैंने बहुत स्लाइड्स बनाई थी वहाँ पर, हालांकि हल्द्वानी से ही बना ली थी। जब मैं तीर्थंकर से पहले हल्द्वानी में 1 साल रहा, वहाँ से फिर जब मैं वहाँ आया तो वहाँ मिला मुझको, और उसके बाद फिर वहीं टीएमयू में ही मुझको प्रोजेक्टर यूज करने का मौका मिला। ठीक है, तो ओएचपी हमने छोड़ दिया। फिर अब कि ओएचपी को छोड़ दो, ओएचपी की लिमिटेशन। तो सोचिए आप, यही तो इनोवेशन है। किसी ने ओएचपी के बारे में सोचा, उसकी जो खामियां थी, कमियां थी, उसकी जो सीमाएं थी, लिमिटेशन थी, उनको कैसे रिमूव करें हम लोग। तो किसी ने कहा कि चलो प्रोजेक्टर को यूज करना शुरू करें। अब उसके बाद क्या हुआ कि साहब प्रोजेक्टर से भी दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ में बोर्ड भी यूज कर रहे हैं हम लोग। तो नेचुरल है, किसी ने सोचा होगा यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन दोनों को मर्ज कर दें हम, कि ये जो प्लेन हमारा जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड क्लास में लगा हुआ, ये और प्रोजेक्टर, इनको मिला दें आपस में। किसी के दिमाग में आया होगा ये, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो देखिएगा, स्मार्ट बोर्ड बन गया। अब स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है आपकी क्लास में, आपको जरूरत ही नहीं है बोर्ड की, आप वहाँ उसको यूज कीजिएगा। चौक, सब कुछ, एवरीथिंग, नाउ यू आर। तो दीज आर द इनोवेशन। लेकिन ये तभी होंगे जब आदमी डिफरेंटली सोचेगा।
तो अभी आप लोग नहीं बोल सकते कि आप ये नहीं हो रहा, हम लोग यू आर 100% लेबल टू डीपर लर्निंग, आपको करनी ही है डीपर लर्निंग, ये ध्यान रखिएगा। The next one is collaborative and cooperative. आप जान रहे हैं whenever we are using this technology, we become more collaborative and cooperative. हम सब बड़े जो है क्या बोलेंगे कोऑपरेटिव हो गए हैं एक दूसरे के लिए। कैसे हो गए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपके पास पीडीएफ आते होंगे बहुत सारी बुक्स के, जो आप लोगों के आपसे रिलेटेड बुक्स हैं। तो किसी के पास आई तो तुरंत क्या कर दिया आपने, शेयर कर दिया, ग्रुप में शेयर कर दिया। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसका एक रिजर्वायर रखते हैं गूगल उस पे जो होती है गूगल ड्राइव, और उसका लिंक शेयर कर देते हैं सभी के लिए, कोई भी यूज करे उसको। ठीक है, तो हम कोऑपरेटिव होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर कोई किसी से किताब मांगे, उसकी हार्ड कॉपी जो होती है कागज वाली, तो वो नहीं देगा। ठीक है, और क्यों नहीं देगा? मैं नहीं देता हूँ, मैं आपको सच बता दूं, मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक है, ढेर सारी किताबें हैं, मैं किसी को अपनी हार्ड कॉपी नहीं देता हूँ। मुझे डाउट है खो जाएगी, मैं भूल जाऊंगा, फिर वो भी भूल जाएंगे देना, और मेरा पूरा कलेक्शन गड़बड़ा जाएगा। तो कोई किसी से बुक शेयर नहीं करेगा, बट बिकॉज वी आर हैविंग द ई कॉपी, क्योंकि हमारे पास ई वर्जन है ना, और उसमें क्या पैसा लगा, हमको फ्री में मिली है, इसलिए हमने दूसरों को फ्री कर दी, दूसरों को फ्री शेयर कर दी, तुरंत शेयर कर दी उसमें। तो इस इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी की वजह से ये भी चीजें बहुत आसान हुई। बहुत बहुत कीमती किताबें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में, आप मेरे जो रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत ही मतलब जिसको कहेंगे कॉस्टली किताबें नहीं मिल सकती, आप मिलेंगी ही नहीं यहाँ पे भारत, वो तक आपको मिल जाएंगी। और तो और हैरानी की बात है, कुछ ऐसी किताबें जो ओरिजिनल वर्जन थे, आप समझ ओरिजिनल वर्जन, जो एक आध 2 3 4 5 किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में कभी आए थे, जैसे हमारे यहाँ बीएचयू बगल में है, तो बीएचयू में कुछ स्टूडेंट्स, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो, तो वो कुछ इतनी रेयर कॉपी के स्कैन स्कैन करके मतलब उन्होंने उसका पीडीएफ बना लिया एक बुक का। तो बोले सर ये एक मतलब ओरिजिनल कॉपी है वहाँ, दैट इज वेरी मच रेयर, वो ना इशू होती है ना कुछ होता है। तो स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या किया कि आप किसी ने सोचा होगा कि इसको स्कैन कर लेते हैं और इसको पीडीएफ बना देते हैं, तो वो शेयर हो जाती है। तो ऑल दिस कम्स अंडर द इनोवेशन। कितना हेल्प कर रहे हैं हम लोगों को ये। तो ये सब चीजें जो है उससे शामिल हैं। नाउ लास्ट वन इज फॉलोइंग कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म देखिए, ये जो है एनईपी भी बहुत बोलती है कि हमको जो है कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करना है, वो बहुत बहुत ज्यादा फोकस है कंस्ट्रक्टिविज्म। नया कंसेप्ट नहीं है, बता दूं आप, कंसेप्ट नया नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, बट अभी फोकस में। एंड व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म? जस्ट टू कंस्ट्रक्ट योर ओन नॉलेज। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज ए टीचर, दिस इज माई बिलीव, एज ए टीचर आई कैन ओनली शेयर माई इंफॉर्मेशन विद माई स्टूडेंट। टीचर होने के नाते मैं क्लास में सिर्फ और सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूँ, विच आई एम हैविंग इन माई ब्रेन, जो मेरे दिमाग में भरी हुई है, जो स्टोर्ड है। ओके, दैट इज नॉट नॉलेज, ये ध्यान रखिएगा। वो नॉलेज नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अब वो इन्फॉर्मेशन, जैसे ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना अभी पीपीटी, दैट इज जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन, नथिंग। ये चाहे तो आप मुझसे ले लो, जो मेरी बात सुन रहे हो, या इंटरनेट से ले लो, या किसी किताब से ले लो, या कहीं से ले लो, तो इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। देन व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? अब ये नॉलेज कब होगा फिर? ये नॉलेज तब होगा व्हेन यू विल, you can say the infuse, you can associated your own experiences with these words, तब बनेगी ये नॉलेज। और कंस्ट्रक्टिविज्म यही बोलता है कि जो whenever we are using new knowledge, new information with our existing experiences knowledge, existing ये knowledge, that will be construct a new knowledge। हमारे पास पहले से जो दिमाग में है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ओके, जिसको हम लोग, आप लोग बीएड वाले उसमें समझते होंगे, हम लिखते हैं ना प्रीवियस नॉलेज, लेसन प्लान जब बनाते हैं प्रीवियस नॉलेज, तो वो जो प्रीवियस नॉलेज के साथ जब कोई नई नॉलेज जुड़ती है और आपको एक नया एक्सपीरियंस होता है, वो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो यही बोल रही है कि हम स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ लेके जाएं। स्टूडेंट टीचर जो है ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस हैं, उसको जोड़ के वो अपनी नॉलेज क्रिएट करे। दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज, ये वहां से आया है। तो मैं एज ए टीचर क्लास में सिर्फ और सिर्फ शेयर करता हूँ मेरी इंफॉर्मेशन। जिस दिन उस इंफॉर्मेशन को आप अपने एक्सपीरियंस से अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में यूज करना शुरू कर देते हो, दैट ऑटोमेटिकली बिकम द नॉलेज। तो ध्यान रखिएगा, क्लास में जो हमारा इंटरेक्शन होता है ना,
वो सिर्फ वो है इंफॉर्मेशन का होता है। इसीलिए इसीलिए ना मैंने जो अभी पहले आपसे बोला, नाउ द टीचर इज द वन ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं बोला था मैंने वहाँ पर। अब इंफॉर्मेशन चाहे मुझसे लीजिए, बुक से लीजिए, इंटरनेट से कहीं से लीजिए, इससे अच्छी नॉलेज, इससे अच्छी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो वो अलग चीज़ है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए, इनोवेशन इन टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मियर चेंजर, मतलब चेंज कर देने वाला। मियर चेंजर का मतलब यहाँ पर है कि वो थोड़ा-सा जो रूटीन है, रूटीन से थोड़ा-सा डेविएट होते हैं। ठीक है? तो वो चेंज करते हैं, दैट इज़ द इनोवेशन। इनोवेशन इम्प्लाइज चेंज फॉर बेटर, पर ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव होगा। जब हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज नेगेटिव भी हो सकता है और चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है। बट आप ध्यान रखेंगे यहाँ चेंज क्या है? पॉजिटिव होगा। इट इज़ ऑलवेज स्टूडेंट सेंटर्ड, क्योंकि बिकॉज़ नाउ वी आर बिलीविंग एंड वी आर प्रैक्टिसिंग all the educational activities in student centered mode। अब सारी एक्टिविटी स्टूडेंट सेंटर्ड मोड पे होंगी। मैं टीएमयू का उदाहरण भी देता हूँ अपनी क्लासेस में। जब हम लोग आए थे यहाँ पर समिट में, तो उस समय पर जो फर्नीचर था हमारे स्टूडेंट्स का बड़ा सिंपल था, बेंचेस थी। ठीक है? और उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे जो है फिर और बहुत ही एडवांस फर्नीचर आ गया था टिमेट में, जब मैं वहाँ काम कर रहा था। बहुत ही मतलब अमेरिकन चेयर जिसको बोलते हैं। अब बेंच से उठा के हमने आपको बैठा दिया अमेरिकन चेयर पे, बड़ी कंफर्टेबल है वो, एसी भी चल रहा है आपको। तो ये सब किसके लिए है? ये इतनी सारे जो इंतज़ाम हो रहे हैं जस्ट टू जस्ट टू फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट्स फॉर द लर्निंग। हम उस लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं। ये सोने के लिए नहीं है क्लास में, कि आप आए आराम से और सो गए। ये सिर्फ़ आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, बिकॉज़ वी आर बिलीविंग इन द स्टूडेंट। हर चीज़, हर एक्टिविटी स्टूडेंट के चारों ओर रिवॉल्व होनी। टीचर अब वो पढ़ाएगा जो स्टूडेंट चाहेगा, जैसे चाहेगा वैसे पढ़ाएगा। तो वी आर मेकिंग आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर एंड मोर, यू कैन से द फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। तो ये जो इनोवेशन होंगे ना, ये याद रखिएगा, ये होंगे किसके अकॉर्डिंग? स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग। इसमें सेंटर में स्टूडेंट ही रहेगा, हमारा टीचर नहीं। काम करेगा टीचर, लेकिन सेंटर में रहेगा हमारा स्टूडेंट। द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस। और सब कुछ किसके लिए है इनोवेशन? ऊपर आई चुकी है, कई बार रिपीट हो चुका है। जस्ट बिकॉज टू इम्प्रूव अवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लास। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में। हर चीज़ जो है कॉस्ट इफेक्टिव हम लोग डिमांड करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव का मीनिंग है दैट इट इज इट मस्ट बी अवेलेबल टू एवरीवन एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। हालाँकि टीचिंग में तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो भी कुछ हो वो फ्री हो। ठीक है? फ्री बिल्कुल, जैसे वो स्वयं वाले कोर्स आपने देखे हैं ना, गवर्नमेंट का है वो, उसमें सब कोर्स फ्री हैं। ठीक है? लेकिन बट अगर ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि भई सस्टेन करने के लिए आपको फंड तो चाहिए, तो वो बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव होने का मतलब ये है। कॉस्ट इफेक्टिव होने का मतलब हमेशा फ्री होना नहीं होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होने का मतलब है कि हर किसी को क्या हो, मतलब बहुत ही रीज़नेबल उस पर अवेलेबल हो कॉस्ट पर, जिससे कि हर कोई उसको यूज़ कर सके। द लास्ट वन इज़ यूज़र फ्रेंडली, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इतना ये क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ऐप यूज़ कर रहे हैं ना, आप सभी लोग, हम लोग सभी लोग ऐप यूज़ कर रहे हैं। दीज़ ऐप्स शुड बी यूज़र फ्रेंडली, मोर एंड मोर यूज़र फ्रेंडली। And you all are aware that you every after some time, frequently you got the link, or you got the message, or you got the email for the करते हैं सब, बार बार लिंक आते हैं ना आपके पास, कभी उस पे कभी उस पे कभी उस पे, मेल पर आएंगे, मैसेज आएंगे, कैसे करके आएंगे। तो ये सब क्यों है? बिकॉज दे वांट टू मेक देयर ऐप मोर एंड मोर यूजर फ्रेंडली। तो ये हमको जो है ये ध्यान रखना है कि इनोवेशन जो होगा वो यूजर फ्रेंडली भी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो एक स्लाइड है, इनोवेशन। अब हम एग्जाम्पल पे आ रहे हैं कि इनोवेशन जो हम बात कर रहे हैं तो वो क्या-क्या होगी। यहाँ ज़रूर ध्यान दीजिए मेरी बात पर। देखिए इस स्लाइड में मैंने सिर्फ 3 नाम लिखे हैं। मैडम नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ा दीजिएगा। 3 नाम लिखे हैं सिर्फ, देखिए। माइक्रो टीचिंग, Okay, sir. सोशल स्किल सिमुलेटेड टीचिंग एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसको सीआई बोलते हैं। Change the slide. बस, Okay. बस, ठीक है, ओके मैम। देखिए 3 नाम लिखे हैं मैंने बस यहाँ पे। ये मैंने डेलिबरेटली लिखे हैं बिकॉज़ ऑल दीज़ इनोवेशंस, they are they are not being considered as innovation now। अब आप कहेंगे यहाँ क्यों नाम लिख दिए फिर आपने इसमें? यहाँ नाम इसलिए लिख दिए मैंने क्योंकि अभी भी भारत में जितने भी टीचिंग लर्निंग हमारे जो कोर्सेज हैं, डीएलएड हो, बीएड हो, एमएड हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज हों, कुछ भी हो, उसमें आज भी इसको कंसिडर किया जा रहा है। बट इंटरनेशनल लेवल पर जब मैं बात करूँ, ग्लोबल लेवल पर बात करूँ, तो माइक्रो टीचिंग स्पेशली, ये आपको बड़ी हैरानी होगी, माइक्रो टीचिंग मेरा बहुत ही फेवरेट
टॉपिक रहा है। मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ माइक्रो टीचिंग के ऊपर। वहाँ मैंने ये 3 मिनट में रहते हुए बहुत देर तक इस पे लेक्चर लिया था, बहुत देर तक, जस्ट 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 बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ये क्या टीचिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे पहले। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान हल्का सा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, अभी भी इंडियन सर्कमस्टांसेस में इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। बट ग्लोबली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है इसको, जिसने डेवलप किया है इसको, उसने इसको डिस्कार्ड कर दिया है नाउ। अभी वही जिसने इनको इन्वेंट किया, जिस यूनिवर्सिटी में, वो कहती है दिस इज द जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन भारत में हम लोग अभी भी चला रहे हैं इसको। तो स्पेशली मैंने आप इसलिए इसको अलग कर दिया कि ये ऐसे हैं कि जो थोड़े से ट्रेडिशनल इनोवेशन है, जिसको आज भी हम इनोवेशन मानते हैं। देखिए, इनोवेशन की एक लिमिट होती है ना। जब टीवी बने थे, बड़े क्रेज में थे, जबरदस्त क्रेज में थे, ठीक है। मुझको याद है कि जब मैं जब मैं छोटा था स्कूल लाइफ में, तो टीवी जो है जिस समय पर हमारे पास नहीं होता था, हमारे पास फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, बड़ा वाला। तो वो बैटरी से तो चलता नहीं था। एक और सज्जन थे, उनका छोटा टीवी था, बैटरी से चलता था। तो बैटरी वाले जो टीवी थे बड़े इनोवेटिव थे। फिर अचानक से कलर टीवी आए, बाप रे बाप, मजा आ गया। फिर तो भीड़ लग जाती थी जिसके यहाँ कलर टीवी होता था, ठीक है। तब से लेके आज तक होते 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 आज हर घर में स्मार्ट टीवी है। अगर स्मार्ट टीवी नहीं है तो कलर टीवी एक अच्छा क्वालिटी का है वहां पर, ठीक है। तो हमको ये भी सोचना होता है ना कि इनोवेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, कितने टाइम तक उसको इनोवेटिव मानेंगे हम। तो इस वजह से मेरा ये कई जगह पर मैं कहता हूँ इस बात को कि ये जो तीनों हैं, ठीक है, भी हम इंडियन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इसको इनोवेटिव मान ले रहे हैं। 1961 में बनी थी ये माइक्रो। सोचिए कितने साल हो गए, 39 साल उधर हुए और 22 साल इधर हो गए, ठीक है। तो इतना लंबा टाइम हो गया और हम इनको अभी तक क्या माने हुए हैं, इनोवेटिव। तो एक्चुअल में ठीक है, बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं, इसलिए मैं कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इनको अलग रखा है कि माइक्रो टीचिंग, सोशल, ये जिसको हम लोग सिमुलेटेड शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, एक्चुअल में उसका पूरा नाम है सोशल स्किल सिमुलेटेड टीचिंग, ट्रिपल एसटी बोलते हैं इसको। और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये वो स्टार्टिंग कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन वो हैं जब स्टार्टिंग का दौर था, जब कंप्यूटर हमारी लाइफ में आना शुरू हुआ था, टीचिंग में आना शुरू हुआ था। तो उस समय पर जो चीजें थी वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन थे। अभी तो हर चीज कंप्यूटर पर है, ये बहुत ज्यादा वाइड हो चुका है। थर्ड वन कंप्यूटर असिस्टेड। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो भी इनोवेटिव है, आप जानते हैं। बहुत ब्रीफली मैं इनको बताऊंगा क्योंकि अभी आगे एक लंबी लिस्ट है। माइक्रो टीचिंग आपके सिलेबस में है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर। टाइम कम, कंटेंट कम, क्लास का साइज भी क्या हो गया, वो भी कम कर दिया। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसको बिलीव करते हुए हम बार बार पूरा एक साइकिल चलाते हैं इसका। और जब तक परफेक्शन नहीं आ जाता है इसमें, तब तक हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप लेसन प्लान पढ़ाओ, अपना डिलीवर करो, और जब हमको लगता है कि वो ठीक हो गए तो हम फिर आगे की बढ़ते हैं। ये तो वो हुआ। सोशल स्किल सिमुलेटेड टीचिंग, ये भी सिंपल है, ये समझ लीजिए एक तरीके से इमिटेशन है। मतलब इमिटेशन का मतलब सिमुलेशन है क्लास में। तो एक्चुअल में जो माइक्रो टीचिंग हमारे यहाँ हो रही है भारत में, हर जगह, उसमें कभी भी जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे आपको क्लास 6 पढ़ाना है, क्लास 7 पढ़ाना है, तो स्टूडेंट्स आपको कभी ओरिजिनल नहीं मिल पाते, है ना। ओरिजिनल नहीं मिल पाते, आप लोग सिर्फ टीचिंग करते हो वहाँ पे जाके। माइक्रो टीचिंग में हमको ओरिजिनल स्टूडेंट नहीं मिलते हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम सिमुलेशन करते हैं। तब हमारे बीएड के स्टूडेंट जो है बैठे होंगे वहाँ स्टूडेंट्स की तरह, एक एक स्टूडेंट हमारा पढ़ा रहा होगा। तो द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन द क्लास, दे आर सपोज टू बिहेव लाइक ए, यू कैन से द स्कूल स्टूडेंट्स। मतलब जो बैठे होंगे उनसे हम ये उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या करते हैं, ये नियम भी है कि आप जो है बीएड के स्टूडेंट की तरह बिहेव नहीं करोगे। आप स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे जो जिस क्लास में आप मतलब लिखा हुआ है कि अगर कक्षा 6 है तो कक्षा 6 के बच्चे की तरह आपको बिहेव करना है। तो वी आर सिमुलेटिंग इमिटेशन, हम नकल कर रहे हैं बच्चों की। तो एक्चुअल में भारत में जो हो रही है, दैट इज माइक्रो टीचिंग इन सिमुलेटेड कंडीशन। इसको हम ऐसे बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सिमुलेशन इज नथिंग बट जस्ट टू, मतलब आप लोग इसको क्लास में अगर बैठे हैं, सिमुलेटेड टीचिंग करा रहे हैं, तो जो आप में से कोई एक स्टूडेंट है वो टीचर की तरह बिहेव करेगा, बाकी स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो ये भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट सेशन जो है ये, मुझे लगता है बीएड में था या नहीं था, लेकिन एमएड में तो तीर्थंकर में था बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं ही पढ़ाता था इसको। तो ये वो है। लेकिन ये कंप्यूटर वाला मैटर जो है, मैं इसलिए यहाँ डिस्कस ना करके आगे करूंगा, क्योंकि अब ये बहुत वाइड होकर आगे बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। अब ये जो आपका मोबाइल है ना आपके हाथ में, जिससे आज लोग हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंप्यूटर। जिस किसी में भी एक्चुअल में कंप्यूटर हम मानते किसको हैं, जिसमें भी आईसी का यूज हो रहा हो, इंटीग्रेटेड सर्किट का, जिसकी अपनी मेमोरी हो, वो हर चीज जो है लगभग लगभग एक कंप्यूटर। इसलिए ये मोबाइल भी आपका क्या हो गया, ये एक तरीके का कंप्यूटर हो गया। देखिए, अब मैंने अगली स्लाइड चेंज कर दी, मैम अगली वाली पे आ जाएं। तो उसमें जो है इनोवेशन में एक बड़ी अच्छी चीज जो सबसे ऊपर लिखी गई है, दैट इज ह्यूमर। ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब रिक्रिएशन, मतलब
इसको कैसे बोलेंगे कि थोड़ा सा हंसी मजाक क्लास में होना चाहिए। ये मेरा बहुत अच्छे से मानना है इस चीज को, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि मैं क्लास में कभी गुस्सा ना करूँ। या मैं ये भी बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स से हमेशा दैट यू शुड नॉट एंटर इन योर क्लास विद योर लॉन्ग फेस। इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस का मतलब होता है गुस्सैल, या मतलब नाराज, या मतलब डीमोटिवेटेड। ये सब चीजें उसी में आ जाती हैं लॉन्ग फेस में। तो आपको क्लास में जब भी जाना चाहिए बहुत ही चीयरफुल वे में जाना चाहिए, ठीक है, बहुत ही। एक क्लास में मतलब जो है, अब देखिए इसका मतलब इसको अलग तरीके से मत लीजिएगा कि आप पूरा दिन 40 मिनट की 1 घंटे की लगा हंसते ही रहे, हंसाते ही रहे पूरे स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं है। ह्यूमर में फर्क है। ह्यूमर का मतलब ये है कि हम क्लास को थोड़ा, जो हमारा वन वे हो गया है क्लास, जो कंड्यूसिवनेस खत्म हो गई है क्लास की, उसको दोबारा से वहां पे एस्टेब्लिश करने के लिए वी शुड यूज द ह्यूमर। बट बिल्कुल पार्शियल होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा टाइम जोक ही चल रहा है यहाँ पे क्लास में। और वैसे मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि अपने स्टूडेंट से कि भाई देखो, टीचर बनने जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि बहुत ही ग्रेविटी के साथ, और बहुत ही क्या कहेंगे हम लोग उसको, रिस्पेक्ट के साथ, अपनी डिग्निटी को समझते हुए पोस्ट की आपका ह्यूमर भी ऐसा होना चाहिए जो किसी को खराब ना लगे। डिग्निटी होनी चाहिए। आप टीचर हैं, आप दोस्तों की महफिल में नहीं है, अपने कुछ भी कर लें वहां पर, लेकिन ह्यूमर होना चाहिए। अब ये सब लोग बिलीव करते हैं क्लास में ह्यूमर होना चाहिए, बट पार्शल होना चाहिए, जब जरूरत हो तब, हर समय नहीं। और उसका भी एक लेवल होता है। ये नहीं कि आप मतलब एक तरीके से बिल्कुल बेहुदा चीजें करने लगे क्लास, वो सब नहीं होना चाहिए। इसलिए ये माना जाता है कि अगर आप ह्यूमर का यूज कर रहे हैं क्लास में, तो वो भी क्या है, अपने आप में एक इनोवेशन है। और बेटर तो ये है कि आप जो कुछ भी आपके जो क्या कहेंगे जोक्स हैं, या आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, आपकी जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं, बहुत अच्छा होगा कि वो आप जो पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तब तो क्या ही कहने। मैं अपनी क्लास में मुल्ला नसरुद्दीन के बहुत एग्जाम्पल देता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन हुआ, ओशो हुआ, इन लोगों के जोक्स आप देखेंगे ना, तो वो एक जोक में जो है पूरा सोल्यूशन ही दे देता है वो। और कभी कभी बड़ा रिलीवेंट होता है वो हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दीजिए वहां पर। लेकिन वापस आना आपको वहीं पर है जहां पर आप पढ़ा रहे थे, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे थे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको जो है ह्यूमर का यूज करना चाहिए। देखो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, वी नीड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। यहाँ मैंने इंटरटेनमेंट वर्ड यूज नहीं किया है, यहाँ मैंने रिक्रिएशनल वर्ड यूज किया है। इन दोनों में भी डिफरेंस है। तो आपको, हम लोग टीचर हैं, मशीन नहीं है, हमको कंप्यूटर थोड़ी है, लैपटॉप थोड़ी है जो एसी लगा के बस चला के 24 घंटा चलाओ। हमको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज चाहिए ही चाहिए। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन यूजिंग द ह्यूमर इन द क्लास। तो कोई ऐसा नहीं है। ह्यूमर किसी भी तरीके का हो सकता है, हल्का मुस्कुराना भी हो सकता है, जोर जोर से हंसना भी हो सकता है, लेकिन पार्शियल होना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। द सेकंड वन इज द गेमिफिकेशन ऑफ लर्निंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। गेमिफिकेशन एक नई चीज है, ये भी एमएड के सिलेबस में है शायद, टीएमयू में। गेमिफिकेशन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वी आर यूजिंग गेम टेक्नोलॉजी इन अवर टीचिंग लर्निंग। कि हम जो गेम प्ले, जो एक गेमिफिकेशन, हालांकि एक मेथड भी है जिसको हम लोग ड्रामा मेथड बोलते हैं वहाँ पर, आप वहाँ भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ इसका है कि आपने पूरे यू यूज द गेम टेक्नोलॉजी इन इंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम की कंडीशंस को आपने गेम बना दिया। क्योंकि आप सबको पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो गेम के लिए बड़ा अट्रैक्टिव रहते हैं। अभी तो एक नई टेक्नोलॉजी और आ गई है, देखिए। देखिए टेक्नोलॉजी का फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ये इनोवेशन जो हुआ है ना, कितना चेंज कर रहा है। मेरी एक स्टूडेंट है यहाँ, पीएचडी स्कॉलर, दैट इज गेमर। वो कहती है सर मैं गेमर हूँ। गेमर क्यों हूँ? ये आपने पबजी का नाम सुना होगा, पबजी का। और एक अभी जो बैन किया है, वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। देखिए उसका क्या नाम था, मैं स्लिप कर गया उसको। तो ये सब गेमिफिकेशन ही तो है। आप सोचिएगा कितना बड़ा इफेक्ट है गेमिफिकेशन का। ब्लू व्हेल का आप एग्जाम्पल लीजिए। मतलब गेम के थ्रू कौन है, क्या कर रहा है, हमको कुछ नहीं पता कौन है, सब एनोनिमस है, सब छुपा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स को वो इतना मोटिवेट करते हैं कि दे कमिटेड सुसाइड। सोचिए आप, ना किसी टीचर का इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर, ना उसके माँ बाप का इफेक्ट हो रहा है उस पर, लेकिन उस बंदे का इफेक्ट हो रहा है जो उसको दिख ही नहीं रहा है, इनविजिबल है। और उसके चक्कर में, ब्लू वेल के चक्कर में, आप सभी को पता है क्या क्या हुआ था। बच्चों ने ऐसे ऐसे जो है मतलब चीजें कर दी वहां पर कि जो बिल्कुल अनबिलीवेबल। कितना बड़ा इफेक्ट है गेमिफिकेशन का। सब गेम ही तो है वो। तो उसी 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 गेमिफिकेशन को लेके हमने क्या किया यहाँ पर, हम उसको हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उस गेमिफिकेशन को लर्निंग में ले आए, कि एक एक वर्चुअल क्लासरूम हो, एक गेम हो, ऐसा क्लास का ही गेम हो कि भाई उसमें स्टूडेंट्स बैठे हैं, कुछ कुछ टीचर बैठे हैं उसमें,
और उनके बीच में एक्टिविटी हो रही है और कुछ गेम टाइप सा हो रहा है, ये क्विज हो सकता है, पजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक इनोवेशन है, लेकिन इसमें आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं हो सकता क्लास में चले गए और आपने करा लिया। ठीक है, गेमिफिकेशन का मतलब ही प्योरली आपको टेक्नोलॉजी आना है। जैसे ये पबजी और ये उस तरीके के जो गेम है ना, ये सारी चीजें, जैसे पबजी को जो है अभी कितना एडिक्शन हो गया था इसको। अभी भी है, जो गेमर मैंने आपको बोला उनकी बिल्कुल हिडन कम्युनिटीज हैं। जो मेरी स्टूडेंट है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी अपनी हिडन कम्युनिटी है गेमर्स की। और ये हिडन कम्युनिटी जो होती है ये गेम के अकॉर्डिंग होती है, कि एक मान लीजिए पबजी में अगर कम्युनिटी है तो वो पबजी वाले ही होंगे उसमें। द पॉइंट इज सिंपल दैट एज ए टीचर वी शुड यूज दिस टेक्नोलॉजी इन द क्लास। लेकिन ध्यान रखिए, थोड़ा प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि चूंकि अब आप गेम कैसे बनाएंगे भाई? You are not a software developer, you are not a technocrat, you don't have any resources, you don't have any knowledge, you don't have any skill to develop the, तो ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये हो रहा है, लोग कर रहे हैं, आपको ऐसी बहुत से क्या नाम मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर जो इस तरीके की गेमिफिकेशन। राइम्स आप देख रहे हैं, छोटे बच्चों की राइम्स होती हैं, तो वो भी किसी का गेमिफिकेशन है, उनके अकॉर्डिंग हम लोग बता दें हैं कितना इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे राइम्स में। देखिए हमारी वाली राइम्स मछली जल की रानी है, हमें तो यही आती थी बस, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं था। और ये सब मुझे लगता है पूरे भारत में मछली जल की रानी है, जो जो हिंदी बेल्ट वाले हैं, ये इन सबको आती थी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इंग्लिश में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और हिंदी में मछली जल की रानी। ये पूरे इसमें नॉर्थ इंडिया में फेमस है। ये हर पुराने मेरे जितने लोग होंगे मेरे साथ वाले या मुझसे बड़े होंगे एज में, उनको यही आती थी। अब ये खत्म हो गई बिल्कुल। अब तो वो इतनी सैकड़ों राइम्स आ गई हैं कि क्या कहने, एक से एक बढ़िया, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो ये क्यों? गेमिफिकेशन है इसका। तो ऐसे ही हम इसको ग्रेजुअली धीरे 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 आगे की क्लासेस में भी ला सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इनोवेशन। इसमें आप फ्री हैं बिल्कुल, आप खुद से अगर बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक इनोवेशन जो है ये भी कुछ नया है, माइंड मैप एंड कंसेप्ट मैप। ये टीचिंग मेथड है एक तरीके से, और सिंपल सिंपल टेक्नोलॉजी है कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, जब हम उसका मैप बना लेते हैं तो वो माइंड मैप होता है। और जब हम जो कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं उसका एक मैप बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा वो कंसेप्ट मैप हो जाएगा। तो ये सिंपल टेक्नोलॉजी है बट दे आर कंसीडर्ड एज द इनोवेशन। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, फिर एनईपी इस पे बहुत बात करती है कि आप प्रॉब्लम कंस्ट्रक्टिविज्म को जब आपको बढ़ाना होगा तो आपको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग लेनी ही होगी। वी हैव टू जस्ट पुट ए प्रॉब्लम बिफोर द स्टूडेंट एंड दे विल फाइंड आउट द आंसर एट देयर ओन। हमको बस एक प्रॉब्लम जो है वो रख देनी है स्टूडेंट के सामने, बाकी जो है चीजें वो खुद देखेंगे अपने आप, वो अपने आप ढूंढेंगे। दे विल कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। प्रोजेक्ट जिसको हम नाम ही इसमें लगा हुआ है प्रॉब्लम है, तो जो डिसर्टेशन होता है या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है वो सब यही होती है कि भाई हमने तुमको समस्या दे दी, इसका आंसर तुमको ढूंढ के लाना है अपने तरीके से। टीचर उसको में रेक्टिफिकेशन करेगा बाद में, जो लगता है कुछ चीजें गलत हैं या गड़बड़ की हुई हैं तो उनको हिसाब से वो करेंगे उसको। द नेक्स्ट वन इज ZA अप्रोच। हमने कॉमा लगा के लिखा है मैथेटिक्स। ठीक है, अब ये क्या है ZA अप्रोच और मैथेटिक्स? मैथेटिक्स इज जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन मैंने जो आपको बताया CAI जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसके 6 प्रकार हैं, 6 टाइप। ब्रांचिंग पहले है लीनियर, फिर है ब्रांचिंग, फिर मैथमेटिक्स है, और एक है उसमें रूल्स एंड एग्जाम्पल करके। इस तरीके से 2 और हैं, वो मैं स्लिप कर रहा हूँ क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ। उसमें जो मैथमेटिक्स है दैट इज जस्ट इक्वल टू द ZA अप्रोच। ठीक है, Z आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में लास्ट वर्ड होता है और A पहला वर्ड होता है, हमने इसको रिवर्स कर दिया। इट मीन्स द लास्ट स्टेप of any fact of any deliberation will be put first before the student। जैसे इसको और सिंपल तरीके से समझिए आप कि जैसे मैथमेटिक्स में मुझे याद हो रहा है कि जब हमको इक्वेशन करनी होती थी, तो जैसे पाइथागोरस की जो इक्वेशन थी उसको हम लोग प्रूव करते थे, तो पहले क्या होता था, AC² बराबर AB² प्लस BC²। यानी कि जो प्रूव करना है वो हमको, जो लास्ट है हमारा, वो हमको पहले दे दिया उन्होंने। That is why we restricted our all activities according to the aim। तो जो लास्ट स्टेप है वो सबसे पहले रख दिया जाता है और सारी एक्टिविटी जो है रिवर्स में चलती है। तो उसमें हम फायदा क्या होता है कि हम उसको मतलब डेविएट नहीं होते अपने उससे, तो हमको पता है कि आखिर में हमको कहाँ तक पहुंचना है। तो दिस इज ए ZA अप्रोच। अभी वहाँ CAI में इसको मैथमेटिक्स बोलते थे, हम इसको अब नया एक टर्मिनोलॉजी इन लोगों ने बना ली है, ZA अप्रोच। मतलब जो लास्ट स्टेप है उसको पहले रखो और पहले स्टेप को बाद। क्लियर? तो ये भी एक अप्रोच अच्छी है कि हम लोग उल्टा चलते हैं। अगला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड यू ऑल आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग लाइक स्मार्ट बोर्ड्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट। जब इंटरनेट की बात हमने कर दी, यहाँ पर इंटरनेट वर्ड हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल टेक्नोलॉजीज, ऑल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी विच आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट। ऑटोमेटिकली सब आ जाता है जो इंटरनेट पे डिपेंड करता है।
ठीक है। स्मार्ट बोर्ड जो आपकी क्लास में लगा हुआ है उससे में भी इंटरनेट कनेक्टेड है, ठीक है, तो आप वो भी यूज़ कर रहे हैं। अभी मेरी यूनिवर्सिटी में भी लगभग हमारी सोशल साइंस बिल्डिंग में ऑल सारे रूम्स में स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। अभी मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है, लग जाएगा, तो वो हमने वहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से लगवाए हुए, बहुत कॉस्टली हैं वो और बहुत अच्छे भी हैं। तो उसमें आप अगर अपना डेलिब्रेशन है तो आप पीपीटी ले जाइए, या आपके पास कोई मूवी है, कोई क्लिप है, वो ले जाइए, या डायरेक्टली आप वहाँ इंटरनेट से कनेक्ट करके उसको दिखा सकते हैं। बोर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस जिस टाइप से वर्चुअल उसमें वो भी लगा हुआ है, क्या नाम, वर्चुअल लैब भी लगी हुई है एक छोटी-सी बच्चों के लिए। तो इस तरीके से अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑटोमैटिकली, क्योंकि इनको यूज़ करने के लिए आपको सीखना भी तो पड़ेगा ना, ये स्मार्ट बोर्ड को यूज़ कैसे करते हैं, कौन-सी चीज़ का भी यूज़ करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ठीक है? तो ऑटोमैटिकली जब आप यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसमें इनोवेशन करते रहेंगे अपने आप, जब सीख जाएँगे उसको। सोशल मीडिया को देखिए आप, सोशल मीडिया, अब तो सोशल मीडिया का ही दौर है। अ, बहुत से जो क्रिएटिव टीचर्स हैं उन्होंने अपने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं और अपने यूट्यूब चैनल तो आप देखते ही होंगे, बहुत सारे बने हुए हैं। तो उसके थ्रू भी क्या है, वो लोग इनोवेशन कर रहे हैं। अब उसमें एक पेन टैब जोड़ते हैं वो लोग। मेरी एक स्टूडेंट है यहाँ, मैं ज़रूर उसका आपको ज़िक्र करना चाहूँगा। रिसर्च स्कॉलर है मेरे डिपार्टमेंट की, एंड शी इज़ इन्वॉल्व इन द ऑनलाइन क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेट एंड जीआरएफ। नेट एंड जीआरएफ की वो क्लासेस लेती है। पेन टैब यूज़ करती है, पूरी स्क्रीन को बना लेती है उसकी तरह, जैसे बोर्ड है। लाइव टेलीकास्ट होता है उसका यूट्यूब चैनल। कोई ना कोई ज़रूर यूज़ कर रहा होगा आप यहाँ से। पल्लवी क्लासेस करके ना उसका यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे उसके स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। और बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी उसका नेट जेआरएफ भी हुआ है उसका, अभी जो रिजल्ट आया लेटेस्ट उसके स्टूडेंट्स का। तो दिस इज़ ए टाइप ऑफ इनोवेशन कि अब हम सिंपल क्लासरूम पर डिपेंड नहीं है कि इंटरेक्शन वहीं होगा कि हम आमने-सामने बैठेंगे, नो। आप यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, आप हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं, अलग-अलग तरीके से। अब जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था अभी खान सर का, और एक वो इस तरीके के बहुत सारे टीचर्स हैं। एक वो आईएएस हैं, वो विजय कीर्ति सर, विजय कीर्ति नाम है, ऐसे ही उनका कुछ नाम है वो। अभी जो थोड़ा-सा हंगामा हुआ था पीछे कुछ दिन पहले, ये सारे लोग स्मार्ट बोर्ड का बहुत ही, और खान सर तो बहुत ही स्मार्टली यूज़ करते हैं स्मार्ट बोर्ड का। सबसे बढ़िया यूज़ करते हैं, आप देखेंगे उनसे उनसे नॉलेज तो लेने की है ही है। आप ये भी देखिएगा स्मार्ट बोर्ड का कितना बढ़िया यूज़ करते हैं वो बंदा। तो ऑटोमैटिकली आप इनोवेट कर रहे हैं, अपने तरीके से कंटेंट को पेश कर रहे हैं। सबसे खास बात मालूम क्या है खान सर की? लैंग्वेज लोकल है, कंटेंट इंटरनेशनल बट लैंग्वेज लोकल। जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ग्लोबल, बट दे आर यूजिंग फॉर लोकल। एनईपी भी साथ को बोलती है, नारा दिया गया था ग्लोकल। पहले होता था थिंक ग्लोबली, एक्ट ग्लोबली। अब चेंज हो गया, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। तो ग्लोबल और लोकल दोनों को जोड़ के बना दिया इन्होंने ग्लोकल। इट मीन्स अवर टीचर शुड बी ग्लोकल। जो कंटेंट होगा, जो मास्टरी होगी, वो कैसी होगी? ग्लोबल लेवल की। लेकिन जो डेलिब्रेशंस होंगे क्लास में वो कैसे होंगे? लोकल लेवल के। लोकल लेवल से मेरा मतलब लोकल लैंग्वेज, लोकल एग्जाम्पल, लोकल फैक्ट। खान सर इसीलिए सक्सेसफुल है, क्योंकि वो उसी भाषा में बोलते हैं जिस भाषा में स्टूडेंट को समझ में आता है। वो इनोवेट करते हैं, तरह तरह की स्लाइड्स बनाते हैं। कितना बढ़िया स्लाइड्स बनाते हैं, आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द इनोवेशन। और ये सब इंटरनेट बेस्ड है। तो मैं इंटरनेट पे नहीं बोलूँगा यहाँ पर, सब कुछ इंटरनेट बेस्ड है ये, जो कुछ इंटरनेट पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़, जो हमारा अगला इसमें है, वो है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जो मैंने अभी आपसे बोला, जो प्रोजेक्ट है वो सब चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है। फ्लिप क्लासरूम, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आई है फ्लिप्ड। ये भी इनोवेशन है। ये अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, थोड़ा-सा टिपिकल है यूज़ करना। लेकिन दिस कैन बी क्लासिफाइड एज़ ए इनोवेशन। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है फ्लिप, ठीक है? तो उस फ्लिप का मतलब होता है जस्ट यूँ पलट देना, ठीक है? तो जैसे कि आप देख रहे थे इस तरफ, जैसे ही आपने फ्लिप पे ऑप्शन किया तो आपका चेहरा हो जाएगा इस तरफ। फ्लिप करना है इसको, पलट देना है इधर के, तो जस्ट एक 180 डिग्री पर इसको क्या कर देना, रोटेट कर देना है। तो रोटेशन है एक तरीके से फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम बड़ा अच्छा भी है, लेकिन थोड़ा-सा देखिए अभी बता रहा हूँ मुश्किल है। इंडियन सर्कमस्टांसेस में अभी हो नहीं पाता वो, लेकिन है बड़ा अच्छा। वो सिंपल, जो उसका सिंपल मोटो है, या सिंपल यूँ कहेंगे कि पंच लाइन है उसकी फ्लिप क्लासरूम की, दैट इज़, उसको इस तरीके से वो बोलते हैं, क्लासरूम एट होम एंड होमवर्क इन क्लास। इसको समझिए और बहुत अच्छे से, क्लासरूम, क्लास वर्क एट होम एंड होमवर्क इन क्लास, जस्ट रिवर्स कर दिया। उनका कहना ये है कि आप जो क्लासरूम में पढ़ाना चाह रहे थे बच्चों को,
वो तो दे दीजिए उन्हें घर पे करने को, और जो आप चाह रहे थे कि ये घर पे करें उसको बोलिए क्लास में करना। फ्लिप, ये है फ्लिप। इससे होगा क्या कि बच्चे कंसंट्रेशन की तरफ बढ़े। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अभी थोड़ा सा मतलब नहीं हो पा रहा होता है अच्छे से यूज, बट आने वाले टाइम में ये यूज होगा अच्छे से। और अभी जब जैसे जैसे हम लोग अपना सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं, डेफिनेटली ये यूज होगा। तो फ्लिप ये है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए, हर टीचर पसंद नहीं करता, कर भी नहीं पाते। तो इस वजह से थोड़ा सा, लेकिन अभी है चलन में, लेकिन अभी स्कूल लेवल पर चलन में है ये, हायर एजुकेशन में भी ये नहीं है, बट आएगा जरूर फ्लिप क्लास में, पूरी क्लास को चेंज कर देना। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। This artificial intelligence is the innovation in every profession, in every field. हर जगह यूज हो रहा है, सिर्फ टीचिंग में नहीं। एक्चुअल में टीचिंग में तो चीजें बहुत बाद में आती हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं, आप जितने साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी के जितने भी एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं ना, टीवी, एजुकेशनल रेडियो, प्रोजेक्टर, OHP, एक्चुअल में ना ये सब टीचिंग के लिए डेवलप नहीं हुए थे, ये डेवलप हुए थे कहीं और के लिए। नॉर्मली ये सारी चीजें जो हैं मिलिट्री के लिए डेवलप हुई थी पहले, लेकिन जब इनकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा हुई, इन सब चीज़ों को देखा गया कि ये बड़े इफेक्टिव हैं भाई, तब उनको हम लेकर आए टीचिंग में। तो बेसिकली मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी जो है ना, ये स्पेशली टीचिंग के लिए नहीं, कॉमन उसमें यूज़ हुई थी। जैसे इंटरनेट है, अब ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेट एजुकेशन के लिए डेवलप हुआ या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डेवलप हुआ, ऐसा नहीं है। ये कॉमन हुआ और इफेक्टिव इतना है कि हर कोई यूज़ करता है इसको। उसी की तरह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये वो इंटेलिजेंस है जो मैन मेड है, ठीक है। वेन द मशीन्स whenever machines become able to take the decision at their own, that will be considered as artificial intelligence. जबरदस्त काम कर रही है इस समय पर, और बड़ा चैलेंज है ये इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे टीचर्स के सामने। मुझे एग्जांपल देना चाहिए सोफिया का, कोरोना से पहले की बात है, कोरोना से मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले की बात है। सोफिया नाम की एक रोबोट का लॉन्च हुआ था, टेस्टिंग फेज में थी वो, और आपका तो पता नहीं क्या हुआ उसका। और कंप्यूटर बेस, सॉरी इंटरनेट बेस होता है ये सब कुछ। तो वो एक रॉबर्ट है, और रॉबर्ट को जो है सोफिया नाम रखा गया था उसका। उसको टेस्टिंग फेज में ला रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का, मतलब जो सब्जेक्ट वाइज है उसका सारा का सारा उन्होंने इंटरनेट से जोड़ दिया था उसका डाटाबेस, ठीक है। और पहले से ही वो उसमें सब चीज़ें डाल दी गई थी, और वो क्लास में जाके पढ़ा रही थी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है फिर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि जब स्टूडेंट ने क्लास में क्वेश्चन पूछा, कोई भी स्टूडेंट्स तो फ्री है ना, वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो उसका आंसर एकदम से सर्च करके बता देती है। अगर स्टूडेंट ने कुछ गलत बोला या क्वेश्चन में उसके कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो वो उसको अपना जो डाटाबेस है उसके बेस पर डिसीजन लेती थी। दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आपकी मशीन जो यूज करते हैं, आपका मोबाइल है, ये भी यूज करता है, सेंसिटिव है, और अभी उतना ज्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन बहुत एडवांस हो जाएगा ये। आप देख रहे थे कि पहले कोड आता था हमें खोलने का इसमें, जिसको पासवर्ड बोलते हैं मोबाइल खोलने का। अब ये आपका थंब वाला आ गया है, ठीक है। टच टच स्क्रीन है सारे फोन, तो उसमें आप अपना ये इम्प्रेशन लगाएंगे इसमें थंब का, तो वो खुलेगा। अभी वो आंखों के रेटिना से खुलने लगा है, ठीक है। आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि वो अपने मालिक को भी पहचानना शुरू करेगा, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा स्टार्टिंग का एग्जांपल है। आप घर में वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, अभी एडवांस वॉशिंग मशीन जितनी भी हैं, वो कपड़ों के अकॉर्डिंग पानी को लेती हैं, ठीक है। जैसे मशीन तो बड़ी होगी, आपने कपड़े डाले उसमें 3-4, तो वो पानी लेगी 3-4 कपड़ों के अकॉर्डिंग। ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा पानी लेगी, वो खुद डिसाइड करेगी कितना पानी लेना है उसमें। तो बहुत सिंपल एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, बहुत एडवांस लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने के लिए हमको इंटरनेट से जोड़ना पड़ेगा, तो कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल इज एलेक्सा। आप एलेक्सा को देख लीजिएगा, आप में से बहुत से लोग शायद यूज भी करते होंगे, या आप अपने इसमें मोबाइल में देख लीजिएगा, ये जो होता है गूगल का जो वॉइस कमांड होता है। हम्म ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है कितना बड़ा चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? इसको ऐसे समझिए कि नाउ यू डोंट नीड टू रीड एंड राइट टू यूज द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट होती जा रही है कि अब ये जरूरी नहीं है कि उसको यूज करने वाला पढ़ा लिखा हो, ठीक है। जैसे ये जो वॉइस कमांड है आपका, इसको देखिएगा आप, ना टाइप करने की जरूरत, कुछ नहीं करने की जरूरत, बस बटन दबाइए, बोलिए, अपने आप ढूंढ के ले आएगा। तो पढ़ने लिखने की जरूरत कहाँ है इसमें? मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ, मैंने खुद देखा है, दे आर इलिटरेट बट दे आर क्वाइट एफिशिएंट इन यूजिंग द स्मार्टफोन, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
पढ़े लिखे नहीं है, फॉर्मर उनको कोई इन्होंने वो नहीं लिया है अपना, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सपोर्ट करती है व्हेन यू आर डूइंग रॉन्ग एंड व्हेन यू आर डूइंग राइट। अगर गलत कर रहे हो तो सही क्या होगा? आप टाइप करते हैं वर्ड में, अपने आप ऑटोमेटिकली जब आप उसका करेक्शन वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे, अपने आप उसका वर्ड जो है क्या होता जाएगा, सही होता चला जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो टीचर्स के लिए बड़ा एक मतलब कहेंगे हम लोग कि एक तरीके से चैलेंज टाइप सा हो गया है कि जब इतनी मशीनें एडवांस हो गई हैं, एलेक्सा जब सबके आंसर दे ही रही है, तो जरूरत क्या है टीचर की क्लास में फिर? लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल रियलिटी ये एक तरीके का मतलब जिसको हम लोग कभी कभी सिंपल वे में ऑनलाइन टूर भी बोलते हैं, कि अब ऑनलाइन टूर कर सकते हैं आप जगह जगह का। तो जैसे मुझको याद है, शायद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है, शायद हो सकता है तीन शंकर ने भी डेवलप कर लिया हो, मेरी जानकारी में नहीं है, कि एक वर्चुअल टूर उसके होम स्क्रीन पर लगा होता है वेबसाइट पर। तो वर्चुअल टूर का मतलब ये होता है कि आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा, स्क्रीन पर ऐसा आ जाएगा, एंड 360 डिग्री मूवेबल होगा वो। 3D तो नहीं होता, बट 360 डिग्री मूवेबल होता है। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप खड़े हैं वहां पर सड़क पर, आपके लेफ्ट में क्या है, आप लेफ्ट वाला जब माउस करेंगे तो आपको लेफ्ट में दिखाई देने लगेगा कि कैसा है वहां पर, राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा। ठीक है। अभी एक ऑप्शन और आ रहा है अमेजन पे, आप देख रहे होंगे, अमेजन फ्लिपकार्ट पे, वो 360 डिग्री व्यू देते हैं उसमें। 360 डिग्री व्यू मतलब आप जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, उसको कहीं से कहीं भी घुमा कर देख सकते हैं, चारों तरफ यूं घुमा के, यूं घुमा के, यूं घुमा के, मतलब उसके डायमेंशन देख सकते हैं उसको 3D में। दैट इज द वर्चुअल रियलिटी। रियल नहीं है, लेकिन रियल जैसा लगता है, तो वो वर्चुअल है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये वर्चुअल रियलिटी एक्चुअल में जो यूज ज्यादा हो रही है ना, वो मेडिकल साइंस में यूज हो सकता है कि आपके पास आपके फेसबुक अकाउंट पर या यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे, जैसे अक्सर जो डिलीवरी होती है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसकी डिलीवरी होती है, कोई ऑपरेशन है, उसको ब्रेन का ऑपरेशन है, कैंसर का ऑपरेशन है, कुछ भी, कोई भी ट्रांसप्लांट सर्जरी है, उन सबके वर्चुअल वीडियो वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, कभी कभी वर्चुअल है, कभी कभी वो उसको मतलब जो है एनिमेटेड फॉर्म में ले आते हैं। तो ये एक बड़ा इनोवेशन मेडिकल साइंस में जबरदस्त यूज हो रहा है। हम लोगों के पास अभी नहीं आया, आएगा धीरे धीरे, कभी हम लोग टीचर एजुकेशन में इतने मतलब स्मार्ट हो जाएंगे कि वो वर्चुअल रियलिटी आएगी, आएगी तो जरूर, ऐसा नहीं है। तो वो यहाँ यूज हो रही है। तो ये वर्चुअल रियलिटी जो है, दैट इज द इनोवेशन। नेक्स्ट इज द वे बेस्ड लर्निंग। अब मैंने अभी आपसे बोला कि जब इंटरनेट बोलते हैं ना तो सब कुछ आ जाता है। पॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग हालांकि थोड़ा पुराना हो चुका है, और पॉडकास्टिंग मतलब जब से स्ट्रीमिंग हमारे पास आई है, स्ट्रीमिंग समझते हैं ना, ये जो आप ऑनलाइन जो वीडियो देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, दैट इज द स्ट्रीमिंग। यही काम जब सिर्फ ऑडियो के साथ हुआ करता था, तो वो पॉडकास्टिंग। ठीक है, पॉडकास्टिंग एक्चुअल में जो एप्पल बनाने वाली कंपनी है, उस सॉरी, हाँ, एप्पल फोन बनाने वाली कंपनी जो है, उसने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम पॉडकास्ट हुआ। कास्ट का मतलब होता है थ्रो अप, एक जगह से दूसरी जगह प्रोजेक्ट करना, फेंकना। और पॉड जो लिया है उन्होंने आईपैड से लिया है उन्होंने, तो इसका नाम पॉडकास्ट इसलिए रखा गया। तो पॉडकास्ट जो था एक्चुअली दैट वाज द ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो ओनली। ये पॉडकास्ट है। जैसे आप अभी एफएम वगैरह सुन सकते हैं अपने इस पर, मोबाइल पर। एफएम आता नहीं है मर्दाबाद में, लेकिन फिर भी आप जो है वो डिफरेंट गाना और ये वगैरह है ना, ये सब तो इसे सुन सकते हैं। तो वो पॉडकास्ट है, ओनली ऑडियो। और जब इसी के साथ वीडियो जुड़ जाता है तो वो स्ट्रीमिंग हो जाता है। ये डिफरेंस है। तो अभी तो चूंकि हम लोग ऑडियो वाला काम तो सिर्फ हम तब करते हैं जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम खाली बैठे हैं, आराम से हैं, तो ज़्यादातर लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो स्ट्रीमिंग आ गई है। तो स्ट्रीमिंग में जो है आप अपनी लाइव क्लास वहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लास। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे लाइव क्लास करते हैं, लाइव डिस्कशन होते हैं टीचिंग को लेके। अभी तो मिनिस्ट्री जो है वो यूज़ कर रही है इस तरीके के स्ट्रीमिंग, यूजीसी कर रही है। तो ये भी एक इनोवेशन है मेरे पास। ब्लॉग्स हैं, लोग ब्लॉग पे अपने शेयर जो है, लेकिन ब्लॉग को थोड़ा सा मतलब टेक्निकली सस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑथेंटिफिकेशन, वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होती है एक्चुअली में। जैसे मेरे मन में कुछ आया, मैंने ब्लॉग पे लिख दिया, तो हो सकता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, या मेरी इन्फॉर्मेशन मिसलीड कर दे आपको, या मैंने जानबूझ के गलत लिखा उस पर, तो वो थोड़ा-सा अलग है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्योरली एकदम वर्चुअल है। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका बेस्ट एग्जांपल है स्वयं। स्वयं पे जब आप जाते हैं, कोर्स की डिटेल होती है, एक छोटा-सा वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो होता है। वो इंट्रोडक्टरी वीडियो जो होता है, वो होता है इसका जो उसका कोर्स कोऑर्डिनेटर है। ठीक है ना? तो वो कोर्स कोऑर्डिनेटर जो है वो उसका होगा, उसके बाद सब लिखा होगा कि इस हफ्ते में आपको ये बताया जाएगा, ये बताया जाएगा, ये बताया जाएगा।
इस टाइम से इस टाइम तक वीडियो हम लोग दिखाएंगे, इस टाइम से इस टाइम तक आपका ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसका पर डिस्कशन होगा, वहाँ पर उसका डिस्कशन फोरम होता है वहाँ पर एक। तो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सॉफ्टवेयर, दैट इज द लर्निंग मैनेजमेंट, इसीलिए इसको एलएमएस बोलते हैं। गवर्नमेंट इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, ज्यादातर चीजों को वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में लाया। हमारे उसमें भी लाया समर्थ, समर्थ का नाम पता नहीं आप शायद आप लोगों के यहाँ यूज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो शायद उन्होंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को दिया है, आने वाले टाइम में हो सकता है वो सबको मिल जाए। तो समर्थ एक पोर्टल है, ठीक है, तो वो समर्थ पोर्टल जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे हर चीज को उस पर ला रही है। तो हमारे यहाँ वो एलएमएस उन्होंने यूज किया, हालांकि वो अभी सक्सेसफुल नहीं है। ना तो अभी टीचर्स हमारे इतने अच्छे से प्रिपेयर हैं उसके लिए, ना सॉफ्टवेयर वो इतना अच्छा काम कर रहा है। तो उसमें जो है सब ये हो रहा था कि हम अपनी क्लास कितनी ली हमने, स्टूडेंट की अटेंडेंस, स्टूडेंट के नोट्स, स्टूडेंट के जो असाइनमेंट्स हैं, और ये एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन ऑनलाइन। ठीक है, ये बीच में जो सॉफ्टवेयर है ये स्टूडेंट्स और मेरे बीच में एक मीडिएटर का काम करेगा, मेरी हर चीज होगी, उनकी हर चीज होगी। तो ये एलएमएस है। तो ये भी एक इनोवेशन है, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि अभी थोड़ा सा भारत उस स्थिति में नहीं है that all teachers are able to use this technology, or institutions are not able to you can say the just to purchase this type of technology tools and technology। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा है ये। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, बाद वाले जो 2 पेजेस पर लिखी थी मैंने, 2 स्लाइड्स पर, ये बिल्कुल एकदम लेटेस्ट चीजें हैं जो आपको आने वाले समय में यूज करनी है, बिकॉज यू ऑल आर द वुड बी टीचर्स। हम तो निकल गए ऐसे ही, और तब भी यूज कर लेते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन आपको तो सबको यूज करनी है सारी की सारी। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए लास्ट की तरफ, जो लास्ट पॉइंट जो मैं इसमें आपसे शेयर करना चाहूंगा, द बैरियर्स। ये जो इनोवेशन है ये क्या रीजन है ऐसे कि हम लोग नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन है समझ लीजिए एक तरीके से। इसमें पहला जो मैंने लिखा है, मैडम अगर स्लाइड आगे बढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इनोवेटिव टीचर्स आर कंसिडर्ड डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब क्यों हम उनके ऊपर ऐसा ब्लेम लगा रहे हैं डिस्ट्रैक्टर्स का, क्योंकि इनोवेटिव टीचर्स जो है ना, ये ट्रेडिशनल से हटकर कुछ काम करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल टीचर्स है वो इन पर आरोप लगाते हैं, अरे इनको देखो दिन भर मजमा लगाए रहते हैं क्लास में कंप्यूटर कंप्यूटर के नाम पे। ठीक है, तो उनको क्या माना जाता है कि डिस्ट्रैक्टर्स हैं, उनके ऊपर ये ब्लेम लगता है। बट ब्लेम गलत है ये, क्योंकि देखिए आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि टीचर्स तो तरह के जो यूज करना चाहते हैं, जो यूज करना नहीं चाहते। लेकिन जो यूज करना नहीं चाहते वो थोड़ा सा कभी कभी ये लगा देते हैं कि डिस्ट्रैक्ट। दूसरा पॉइंट देखिए, इनोवेटिव टीचर्स आर कंसीडर्ड डिस्टर्बिव, के डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं ये। तो ये थोड़ा सा आरोप लगता है उनके ऊपर कि बार बार पीपीटी यूज करते हैं, इनकी वजह से हमको भी कर जानी पड़ रही है और हमको भी सीखना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा लगता है आरोप। और लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिनको यूज करना है वो करें। ऐसा मेरा मानना है कि जो बहता हुई धारा होती है वो झरना कब बनती है, बहती धारा। बहती धारा झरना तब बनती है जब उसकी राह में कुछ पत्थर आ जाते हैं। पत्थर जो है पानी के प्रभाव को रोकते हैं, और उससे शोर होता है, उसी से झरना बनता है। वो झरना बड़ा शोर लगता है हमको, लेकिन बड़ा सही लगता है जब आप उसे बहुत शांत से देखेंगे। तो ये डिस्ट्रप्शन जो है, ठीक है मान लेते हैं दूसरे टीचर्स के लिए ये डिस्ट्रप्शन हो सकता है, बट एक्चुअली दिस इज ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चीजों के लिए। नेक्स्ट है द इनोवेटिव टीचर्स आर कंसीडर सीकिंग चीप पॉपुलरिटी। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये तो कंप्यूटर यूज करके, लैपटॉप यूज करके, पावर पॉइंट बना के, सॉफ्ट कॉपी देके बच्चों को ये पॉपुलरिटी हासिल करना चाहते हैं। बट ये भी उनका आरोप जो है गलत होता है। ये सब साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर मैं व्हाट्सअप यूज कर रहा हूँ या मेरा अपना कोई यूट्यूब चैनल है या मैं व्हाट्सअप पे चैटिंग कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि गलत है ये भाई, ठीक है, हम लोग नहीं मिल पा रहे या बच्चों को एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है या मुझको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं बात कर रहा हूँ उनसे, क्या दिक्कत है इसमें चीप पॉपुलरिटी की जरूरत ही नहीं है। और स्टूडेंट से आएगी पॉपुलरिटी, वो तो हमारा मतलब ड्यूटी है कि हम बच्चों को जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से पढ़ाएं, या जिस तरीके से वो चीज़ों को चाहते हैं उस तरीके से डिजाइन करें। तो इसमें पॉपुलरिटी का कोई इशू ही नहीं है, ये तो सब वेग चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ डेविएट करने की। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन एक बैरियर है ये देखिए, थोड़ा आरोप लगता है तो इसमें थोड़ा टीचर बचते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट एवरीबडी इंटरेस्टेड इन इनोवेशन। हर कोई है भी नहीं, हर कोई कर भी नहीं सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही आप देखते हैं ना कि राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलता है टीचर्स को, एनसीईआरटी भी देती है इनोवेटिव प्रैक्टिसेस पे। तो हर टीचर के लिए थोड़ी है वो, कुछ उन चुनिंदा टीचर्स के लिए हैं जो उसको कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हर आदमी कर भी नहीं सकता, हर आदमी करता भी नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल इनर्शिया और फोबिया।
ठीक है, ये जो 4th पॉइंट है, ये एक्चुअल में 5th पॉइंट का रिजल्ट है, तरीके से समझिए, उसका इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट है, कि आज भी फोबिया होते हैं बहुत तरीके के। फोबिया आप जानते हैं, डर, फियर, भय। टेक्नोलॉजिकल फोबिया भी होता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर वेरी मच फियर इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत से लोग आज भी स्मार्टफोन नहीं रखते, ठीक है, उनको ये लगता है कि बाहर बहुत से लोग, बार बार गवर्नमेंट कहती है कि भाई आधार लिंक करो या फिर ऑनलाइन बैंकिंग ले लो, या इस तरीके से वो लोग नहीं करते। उनको डर ये होता है कि मैं यूज करूंगा तो या तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मेरे अकाउंट से पैसा चला जाएगा, या मैं बोल नहीं पाऊंगा स्क्रीन पर, या मैं स्क्रीन को यूज नहीं कर पाऊंगा, मैं पीपीटी नहीं बना पाऊंगा, मैं जूम पर नहीं जा सकता, या मैं बोल नहीं सकता, या कुछ भी कर सकता, मैं शेयरिंग नहीं कर सकता स्क्रीन की। तो टेक्नोलॉजिकल इनर्शिया, कुछ लोग सीखना ही नहीं चाहते, ठीक है काम तो चल ही रहा है ऐसे, सीख लेंगे तो और मुसीबत हो जाएगी, फिर हमको ही करना पड़ेगा ये काम। तो इनर्शिया भी है और फोबिया भी है। फोबिया डर है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, उनको डाउट है अपनी एबिलिटीज पर कि मैं कर नहीं पाऊंगा। इनर्शिया, वो जानते हैं कर लेंगे लेकिन करेंगे नहीं डिलीवरी। ये फर्क है। तो ये भी एक बड़ी चीज है कि हम जो है इसमें इन सब चीजों को लेके चलते हैं कि ये सारा बैरियर्स है हमारे पास। लेकिन फिर भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि कोरोना जो पीरियड 2020 निकला हमारा, उसको लोग एज ए टीचर मैं यही पॉजिटिव पाता हूँ कि द मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर नाउ एबल टू यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कैसे भी हुआ, चाहे सरकार के दबाव में हुआ, स्कूल के दबाव में हुआ, या कुछ भी हुआ, बट नाउ दे आर यूजिंग दिस, ठीक है। और अब उनको अच्छा लगता है, अब जैसे जैसे यूज कर रहे हैं उनको अच्छा लगता है। उनका जो इनर्शिया या फोबिया था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है। स्टार्टिंग में हमको भी तो दिक्कत थी, कौन जानता था जूम के बारे में। गूगल यूज कर रहे थे इतने दिनों से, जीमेल भी यूज कर रहे थे, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट द गूगल मीट। तो फिर हम लोग गूगल मीट पे गए। पेन टैप कोई नहीं जानता था इससे पहले, पेन टैप क्या होती है। हम उससे गए, कितने ही सॉफ्टवेयर हैं, एक आध नहीं, हम अवेयर नहीं थे। लेकिन कोरोना के दौरान हम अवेयर हो गए, नई नई टेक्निक हमने सीखी, नई नई बच्चों ने भी सीखी, हमने भी सीखी, सब लोगों ने सीखी उसमें। ठीक है, एक बड़ा इश्यू ये था कि अटेंडेंस कैसे ली जाए इस पर। जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं जूम पर, तो अटेंडेंस कैसे ली जाए, ठीक है। तो भाई अटेंडेंस के लिए क्या हुआ, गूगल जैसे क्लासरूम जो है वहाँ अटेंडेंस का ऑप्शन है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें फिर इंस्टीट्यूशनल आईडी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के पास। तो सॉल्यूशन निकले, सॉल्यूशन है, पहले तो हमको पता ही नहीं था, लेकिन अब कम से कम अवेयर तो हैं, ठीक है। तो इसलिए इनोवेशन जरूरी भी है, लेकिन ये ध्यान रखिए कुछ लोग करेंगे, सारे लोग करें अच्छी बात है, बुराई नहीं है। अगर सब लोग करने लगे तो कोई बुराई नहीं, हम सब लोग कर नहीं पाते उसको, और करेंगे भी नहीं। तो इसी के से इनोवेशन है। एंड आई अपील टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, देन यू शुड थिंक अबाउट सम इनोवेशन, वेदर यू आर ए स्टूडेंट और यू आर ए टीचर, कुछ भी हो आप। और इनोवेशन का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कोई नई मशीन बना लीजिएगा, नहीं, अगर बना सकते हैं ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं ठीक है, अच्छी बात है। बट इफ यू आर नॉट एबल, तो जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्लास में तो हम अपने बोलने में, बताने में, समझाने में चेंज ला सकते हैं ना, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, तो उसको कर लीजिएगा। बच्चे जैसा चाह रहे हैं उसको वैसे पढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा ह्यूमर लाइएगा, थोड़ा सा हंसी मजाक कीजिएगा, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। लेकिन वैसे कीजिएगा जैसे बच्चों को समझ में आ रहा है, तो टीचिंग ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी तरह आप जो टीचर बाई चांस यहाँ आए हैं ना, वो बाई चॉइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारा पूरा एम यही रहता है, पहले दिन क्लास में बोल देता हूँ बच्चों को, भैया मैं तो पहले बच्चों से पूछता हूँ कौन कौन है टीचर बाई चांस और बाई चॉइस वाले। बाई चॉइस वाले तो हमेशा ही कम होते हैं, बाई चांस वाले बहुत सारे होते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मैं भी यही हूँ भाई। लेकिन अब मुझको बहुत प्राउड फील होता है कि मैं टीचर हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि ड्यूरिंग योर बीएड एंड एमएड, दिस इज माई ड्यूटी इन कन्वर्टिंग यू फ्रॉम बाई चांस टू बाई चॉइस। अगर मैं और मेरा संस्थान, मेरा कोर्स, बीएड एमएड जो भी है, अगर वो तुम्हारे बाई चांस को बाई चॉइस में कन्वर्ट कर देता है, तो ये सक्सेसफुल है मेरे इंस्टीट्यूशन की उस कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बाई चांस से बाई चॉइस से पढ़िए। एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। मेरी साइड से ये पूरा हो गया। इनोवेशन को लेके देखिए बहुत कंट्रोवर्सी भी है, और बहुत लंबा समय भी लगेगा उसको डिस्कस करने में। तो अभी मेरी तरफ से ब्रीफली यही है, और मेरी तरफ से ओके है। एंड ओवर टू नाहिद मैम। अगर इंटरेक्शन में चाहूँगा बच्चों का कोई सवाल हो तो वो पूछे मुझसे, कोई डिस्कशन हो तो बताएं। Hello, thank you so much, sir, for such a wonderful lecture on behalf of all students and staff. Students, आपकी कोई क्वेरी हो सर से, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो लेक्चर को लेकर, तो आप लोग कर सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड।
हेलो स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट एनी अगर क्वेरी? कुछ बताना चाहे, पूछना चाहे तो बोलिए। बेटा कोई भी स्टूडेंट सर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इनोवेशन के लेक्चर को लेकर आपका कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बुशरा, इशिका, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आपने इतने अच्छे से समझा दिया है कि मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है। ओके मैम। मैं एक बार अपने फ्रेंड्स की तरफ से एक बार फिर आपको थैंक यू बोलूंगी कि आपने नवाचार को लेकर बहुत अच्छे से समझाया और इलस्ट्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग दिए कि जिनको अगर नहीं भी पता होगा इनोवेशन है क्या, उनको समझ में आ गया होगा। नाउ आई रिक्वेस्ट टू अवर beloved principal ma'am, Professor Rashmi Mehrotra, for deliver a vote of thanks. Okay, Nayat. Thank you, Nayat. Sir, Ravi sir is here? Yes ma'am, yes ma'am, I am here. Okay. Sir, we are very thankful to you for a nice and informative lecture. You explained each and every aspects of innovative practice in very easy and favorable way. You cleared the objectives of innovative practices, especially in teacher education discipline, and how can apply in your learning and teaching, keeping in mind that this learning must be student-centric. You explain very easily problem-based learning, data approach, integration, flipped classroom, artificial intelligence, virtual reality, web-based learning, and barriers of innovation. Sir, this is very informative session for our students. So I very thankful to you for delivering the lecture. Thanks to all ma'am, Sorry thanks to all. again and again for this type of lecture. Yes, surely I will be available. Our invitation and Sure ma'am, sure. okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, thank you ma'am. Okay, goodbye to all of you and very much thankful. Thank you. थैंक यू सर। रविकांत सर, आपने एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन और जैसे ही डेट और टाइम हमारा डिसाइड हुआ उसके अकॉर्डिंग ही आपने कोई एक्सक्यूज नहीं करते हुए, ये भी एक इनोवेशन का एग्जाम्पल है कि जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे जो एक्सक्यूज करते हैं वो किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं था। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि इन फ्यूचर भी आप हमारे यहाँ लेक्चर लें और सर एक वर्कशॉप जरूर ऑर्गेनाइज करिए। जरूर मैम, जरूर। नेक्स्ट टाइम आई विल बी इंटरेक्ट विद स्टूडेंट इन द फेस टू फेस मोड, वो ज्यादा अच्छा होगा। ओके वर्चुअल प्लेटफॉर्म की कुछ लिमिटेशन जी सर, ऑफलाइन मोड में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके मैम।